Good evening, everyone. I'm audible to everyone. Okay. So first, we will talk the basic things about the sorry, uh, gas turbine. है ना? And this demo I am conducting for session September session. You can say that okay, 3 of 2026. No? So we will talk about the roadmap for the model 15 and whatever DGCA have done changes. है ना? After roadmap, we will go through the CR66 syllabus. I will explain the syllabus and the basic books which we need to cover for the gas turbine. After that, we will start EASA and I will teach a chapter of EASA, the, whatever you can say, or if it will depends on me, I will start a type of gas turbine engines or a basic structure of the gas turbine engines. Yeah, you can say that the demonstration of the engines and evolutions of the engines I will define. Okay. So recent changes, whatever have DGCA done, is the very important to understand for the gas turbine or any particular model, है ना? बिना उसको समझे अगर आप पेपर प्रिपेयर कर रहे हो एंड कुछ भी पढ़ रहे हो देन यू विल नॉट एबल टू पास दिस पेपर, है ना? तो पहले के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया और कुछ चैप्टर्स which was not important in previous sessions but अब वो चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? लाइक नम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दे विल आस्क नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना? कितने क्वेश्चंस हो गए? 9 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, है ना? फ्रॉम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, 9 एंड 9. पहले इतने नहीं पूछे जाते थे. दे वर आस्किंग ओनली 1 or 2 questions or 1 or 2 questions, है ना? But now some module 1 and some module 2 is the very important for this पेपर्स, है ना? अगर वो दो सब मॉड्यूल आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो 20 अप्रॉक्स 18 क्वेश्चन आपके सब मिस हो जाएंगे. तो वैसे भी फेल हो जाना है, उसी उतने पे ही आप फेल हो जाओगे, है ना? तो you need to understand the weightage or recent changes whatever DCCA I have made, है ना? So firstly we will go through the roadmap for the preparation and what books we need to cover for the guest event, and after that we will go through the CAR66 or whatever changes are made in the gas turbine. उसके बाद हम लोग बेसिकली थ्योरी पे आ जाएंगे. ठीक है. Just 1 second. So my name is Arif Ali Ansari. I want to just share a basic intro of myself, है ना? तो like a basic, I am Arif Ali Ansari. I have done studied from a government college, ATI Aeronautical Training Institute. I passed from this college in 2023, or you can say that April 2023. After that, I joined Indigo in July, basically July 2023. I worked with Indigo 2.5 years, 2.5. After that, I joined Air India as a trainee AME V2 trainee AME. I passed from college as a B2 candidate, है ना? So in college time, I passed all B2 modules. After that, I gave all B1 modules. So if you passed all B2 modules, there is a 4 module which is same to same for the B1 as well, है ना? तो 4 मॉड्यूल सेम होते हैं. 4 मॉड्यूल को आप लेफ्ट कर लो तो यू नीड टू गिव 7 other modules फॉर कंप्लीट फॉर B1, है ना? तो आई गेव 7 मॉड्यूल्स. उस टाइम मैं वर्किंग ही था एंड आई वाज वर्किंग इन द इंडिगो. तो 2023 में मैंने 7 मॉड्यूल्स दिए जो बचे हुए थे 11 के जो मुझे देने थे.
Then I passed 7 modules. I gave 3 attempts. I gave June, June session, September session, and December session. So in 3 attempts, I passed all modules. I gave गैस टर्बाइंस सेपरेटली. तो पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को B1 के सारे मॉड्यूल अटेम्प्ट करने हैं. तो पहले मैंने केवल गैस टर्बाइन दिया, इसलिए क्योंकि गैस टर्बाइन मेरे को बहुत अच्छा लगता था पढ़ना और समझना. 14 मैंने दिया था लास्ट अपना जब B2 में. तो मेरे को गैस टर्बाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. और मैं क्योंकि आई एम टीचिंग सिंस 2022. तो स्टूडेंट्स वर आल्सो आस्किंग दैट सर प्लीज़ टेल गैस प्लीज़ टीच गैस टर्बाइन आल्सो. तो मैंने बोला कि अनटिल अनलेस आई विल पास द पेपर्स तभी तो पढ़ा सकता हूँ, वरना फिर आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा कि बिना पास किए पेपर कैसे पढ़ा रहे हो. तो आई गेव गैस टर्बाइन जून 2023 एंड आई पास्ड. तो जैसे गैस टर्बाइन मैंने पास किया, देन आई स्टार्टेड द टीचिंग द गैस टर्बाइन. एंड जब उसके बाद मैं इंडिगो ज्वाइन कर लिया था जून जुलाई में. फिर मन हुआ कि नहीं अभी सारे पेपर ही कंप्लीट करते हैं. तो फिर मैंने 6 पेपर जो बचे हुए थे तो 2 अटेम्प्ट और दिया था 3-3 के पेयर में. तो वो हो गए थे, क्योंकि अगर आपके पास एक मॉड्यूलर सारे एग्जाम हो जाते हैं तो बाकी सब पेपर बहुत इजी हो जाते हैं. यू कैन इजीली प्रिपेयर. तो मेरे को फिर B1 टफ नहीं लगा, बहुत इजी प्रिपेयर में सारा हो गया, क्योंकि रिसेंट आई डिड क्लियर ना B2 पेपर्स, तो इजी लगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द B1 पेपर्स आई गेव RTR. तो DCCA वाला नहीं दिया था मैं. आई हैव पास्ड RTR फ्रॉम WPC, है ना. ठीक है. तो बट मैंने प्रेफर ही किया फिर भी B2 ट्रेनी है. मेरे को B1 नहीं जाना था. ठीक है. तो कैटेक ऑप्शन आज भी है मेरे पास, बट आई हैव मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है. तो अभी ट्रेनी एम ही हूँ मैं, B2 ट्रेनी एम एयर इंडिया. Now, just I want to know about like you are all fresher for gas turbine or you have attempted in previous sessions. Uh, Who are freshers? Just raise your hand. Now, Nawajis, okay, and Alpha, ठीक है. Uh, Rahul, okay. So I will talk according to that, है ना, कि जो फ्रेशर है उनको बहुत बेसिक आइडिया नहीं होगा ज़्यादा. ठीक है. तो मेरे को थोड़ा समझना ज़रूरी है. वो आर फ्रेशर्स और नॉट. ठीक है. आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. तो अभी मैं मॉड 10 का क्लास कंडक्ट कर रहा था. ठीक है. उसका ही PDF ओपन हुआ है. इसको क्लोज करते हैं. So this is the weightage I have टेकन फ्रॉम द CR66. ठीक है. जो भी उसमें डिफाइंड है, मैंने अपने पास से कुछ ऐड नहीं किया है. जो भी रिसेंट चेंजेस 66 ने किया है वही अपडेट्स है. ठीक है. तो आई हैव मेंशनड हियर द वेटेज फॉर द गैस टर्बाइन. You can see here the number of questions for B1 category is the 92, and for Cat A category or A3 category is only 60. ठीक है. तो there is no changes in the number of question. ठीक है. There is a changes whatever have DGCA made, that is they have fixed the number of questions with respective sub modules, है ना. पहले ऐसा नहीं था. पहले DGCA ने फिक्स नहीं किया था. तो प्रॉब्लम क्या था? द प्रॉब्लम वाज दैट वी कांट जज कि हाउ मच वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस. नाउ
with this weightage we can just, है ना, if we have prepared 5 chapters, so we already know about that कि we have prepared 5 chapters means we have covered the syllabus around 20 to 30%, or we can take the correct answer with 20 to 30 question, है ना. तो वी नाउ वी कैन जज, बट प्रीवियस वी कान जज. तो प्रीवियस वाला जो भी रूल्स था वो बहुत डिफिकल्ट था, मुश्किल था. और देयर वाज अ वेरी बिग इश्यूज लाइक कि वी कांट फाइंड आउट आवर वीकेंड एरिया. लाइक आपको लगता था कि सर मैं इस बार इनलेट पढ़ के नहीं गया, आई हैवंट रीड इनलेट वेरी मच, दैट्स व्हाई आई फेल्ड इन गैस टरबाइन. बट इन नेक्स्ट सेशन यू रीड इन बेटर वे, है ना, कि बहुत अच्छा किया, नाउ आई विल पास द एग्जामिनेशन. बट क्या होता है कि इनलेट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अब वो बियरिंग एंड शील से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एंड अगेन यू आर फेल्ड. तो प्रॉब्लम हुआ. दैट्स वाई द प्रीवियस रूल्स वाज द वेरी बैड, है ना. नाउ इज द वेरी गुड थिंग्स वॉट एवर डीसीए हैव मेड, है ना. थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, हु आर द प्रीवियस स्टूडेंट्स उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट ये बहुत अच्छा रूल है. ठीक है. यू कैन जज योर प्रिपरेशन बिफोर द एग्जामिनेशन कि आप सच में पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो. तो फिर गलत फहमी पाल के नहीं रखोगे ना कि हम पास हो जाएंगे, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है. ये वाली गलत फहमी नहीं रहेगी. एटलीस्ट यू विल नेवर ब्लेम द डीजीसीए कि हाँ अब ब्लेम भी नहीं करोगे कि हमने बहुत अच्छा पढ़ा था फिर भी फेल होगा. ये ब्लेम वाली भी सिचुएशन नहीं होगी. तो आज जनरली आई वांट टू से दैट, ना मेरे को जनरली ये सब बातें नहीं बोलना चाहिए, बट आई वांट टू से दैट आई हैवंट फेल्ड इन द डीजीसीए एग्जामिनेशन इन एनी पेपर्स. मैं एक भी पेपर में नहीं फेल हुआ, सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकला. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मैजिक है, आई हैव नो मैजिक कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में आई हैव पास ऑल पेपर्स विद द फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैवंट फेल इन द डीजीसीए एग्जामिनेशन. ऐसा नहीं है. You need to follow a basic path, you need to follow a basic guideline, है ना. You need to understand the PYQs and what is the DGCA criteria, whatever they are asking in the examinations, we need to understand, है ना. If we are working on that, we will never fail in the DGCA examination. And my perspective, DGCA examination is the not very big things to achieve, है ना. क्योंकि हमारे क्लास में के तो जो स्टूडेंट्स थे, इवन माय बैचमेट्स, वो भी ऐसे ही निकाले हैं, वो भी फेल नहीं हुए. उसमें कुछ ही, मतलब सारे तो नहीं होते हैं, बट जो हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स थे, वी आर 4 and 5 स्टूडेंट्स, तो सेम ग्रुप में हम रहते थे, तो हमने ऐसे ही सब निकाले पेपर्स, साथ साथ में सारे पेपर्स निकाले. और क्योंकि आई I faced a problem when I gave my first attempt. I gave module 3, module 7 and module 10 and module 9. तो मुझे समझ में आया कि हाँ डीजीसीए एग्जामिनेशन आर द वेरी टफ, और वी नीड टू go with the PYQs and analysis of PYQs कि how they are question are making and asking in the examination, है ना. If we don't go through these things, तो I will never pass with the first attempt. ये समझ गया. तो 7, 9, 10 में पास हो गया था. समझ रहे हो पास होने की मीनिंग है? आई जस्ट पास द एग्जामिनेशन. आई गॉट 51 मार्क्स इन द 7 फॉर B2. आई गॉट 30 मार्क्स फॉर 10 एंड आई गॉट 16 मार्क्स इन द 9. तो आई जस्ट पास्ड. तो माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी बैड कि इतना बुरा हुआ पेपर. आई रीड अ लॉट बट आई हैवेंट, माई परफॉर्मेंस वॉज नॉट गुड इन द पेपर्स. ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था फिर भी इतना गंदा हुआ पेपर. तो आई हैवेंट एनी होप कि आई विल पास द पेपर्स, बट आई पास्ड. ठीक है. तब मैंने वर्क किया. आई डिड वर्क ऑन द PYQs, आई डू एनालिसिस कि नहीं अब इस तरह से नहीं हमें फेस करना है पेपर को, इतना मुश्किल के साथ नहीं फेस करना है कि मैं जज ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, और मेरे को बहुत टफ लगा एग्ज़ाम. तो आई डिड द एनालिसिस, आई अंडरस्टैंड द पेपर्स BGCS. तो फिर उसके बाद मैं फेल नहीं हुआ. अगर मैंने वो गलती फिर दोबारा किया होता तो कंफर्म था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल हो जाता किसी न किसी पेपर में, बट आई डिडंट डू दैट मिस्टेक अगेन. ठीक है. So you can check here the
there is a 19 sub modules, sorry 22 sub modules, or they have fixed the number of question with respect to sub module. The three there is no changes. पहले भी इतना ही पूछता था प्रिजर्वेशन से, ठीक है, और इंजन मॉनिटरिंग एंड ग्राउंड ऑपरेशन से कम पूछता था, टू ही क्वेश्चन पूछता था, बहुत मैक्सिमम पूछता था, दे वर आस्किंग 2 to 3, बट नाउ अब दे विल आस्क क्वेश्चन नंबर 7। तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस। फायर प्रोटेक्शन से भी अप्रॉक्स 3 पूछते थे, इनसे भी 3 पूछते थे, इनसे भी 3 पूछते थे, इनसे भी 3 पूछ रहे थे, इनसे 5 पूछते ही थे, इनसे 2 पूछते थे, मतलब इनसे फ्रॉम टर्बो प्रोब दे वर आस्किंग 3 to 4 क्वेश्चंस। तो ज्यादा देयर इज नो मेजर डिफरेंस, है ना, कि उन्होंने बहुत ज्यादा नंबर फिक्स किया नहीं, देयर इज नो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस। और दे वर आस्किंग टरबाइन कंस्ट्रक्शन ओनली 2 क्वेश्चन। इंजन इंडिकेशन अगेन they have increased the criteria। इंजन इंडिकेशन सिस्टम से 1 to 2 ही क्वेश्चंस दे वर आस्किंग, but now they will ask 7 questions, or they are asking in 2026 7 questions they are asking, है ना। तो they have changed, they have made changes, है ना। स्टार्टिंग इग्निशन 4 क्वेश्चंस, ये भी सेम है। एयर स्टार्टर 3 एंड फ्यूल सिस्टम आप अच्छे से पढ़ के जाते थे 5, लुब्रिकेशन एंड 4, बेरिंग एंड सील 3, इतना ही था। एग्जॉस्ट से 5 था, टरबाइन सेक्शन 5, कॉम्बिनेशन 5। हाँ, नाउ अगेन चेंजेस। कंप्रेसर से दे वर आस्किंग 3 or 4, now they will ask 7, or they are asking 7। फंडामेंटल एंड इंजन परफॉर्मेंस वर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दैट एग्जामिनेशन, है ना। कि अगर आप ये दोनों ऐड कर दो तो ये लोग कितना पूछते थे पहले पेपर में, आप देखोगे तो 3 to 4 क्वेश्चन ही इनसे होंगे। और इंजन परफॉर्मेंस से क्या डेटा होगा, इंजन रेटिंग और कौन सा, वही ईजीटी टीआईटी का जो कंपेयर करता है, जो बहुत मुश्किल होता है समझना, बस वही पूछते थे कि क्या हम टीआईटी मेजर करेंगे या ईजीटी मेजर करेंगे या आईटीटी मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे, क्या इंजन की परफॉर्मेंस रेट। वही मिस्टेक करते हैं, वही ग्राफ वाले क्वेश्चंस एक दो पूछेंगे वही घुमा घुमा के, ठीक है। स्पीड बढ़ने से, थ्रस्ट बढ़ने से स्पीड क्यों कम हो रहा है, या स्पीड बढ़ने से थ्रस्ट क्यों कम हो रहा है, ये वाला पॉइंट, एक बेसिक पॉइंट पे जाके फिर बढ़ने लगता है स्पीड थ्रस्ट के साथ, ठीक है। ये ग्राफ ये सब पूछते थे, बट इतना डीप में नहीं जाते थे, बट वी विल जस्ट टॉक अबाउट दैट, है ना। तो फंडामेंटल एंड 15.2 नाउ इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 9 to 9 समझ रहे हो, 18 क्वेश्चंस, इफ यू विल मिस हियर you will fail the paper, सिंपल है। तो पास करने के लिए भाई तो हमें अब each and every sub module is the very important, we need to covered very well from the respective books। अगर आप नहीं कवर कर रहे हो तो we are not able to pass these papers। अब हम हवाबाजी नहीं कर सकते कि पीआई क्विज पढ़ के हम पास हो जाएंगे और थोड़ा हाईलाइटेड बुक पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, ना, वो काम ही नहीं आएगा, ठीक है। we need to read proper book, we need to go through that proper book, है ना, उसके बिना नहीं होगा। now we will talk about the books, and we need whatever which is important for the gas turbine, ठीक है। तो firstly for the core book we need to read EASA line to line, है ना। तो you can follow my EASA जो मैंने हाईलाइट किया, मेरा वाला EASA। अब किसी का येलो वाला EASA हाईलाइट किसी ने मार्क कर दिया, केवल एक एक लाइन खींच दिया, वो पढ़ लोगे तो वैसे भी नहीं पास होगे, उसमें कुछ नहीं मार्क्स किए, जो इंपॉर्टेंट थिंग से बहुत मिस हुआ है। तो you know to follow only my EASA। if you are following trigger तो just follow highlighted by me, because मैं जितना भी हाईलाइट करता हूँ वो हमेशा एक्स्ट्रा ही करता हूँ, और उस हाईलाइट से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सिंपल है, मैं कह रहा हूँ। आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ठीक है, अप्रॉक्स हो रहा है, मुझे पता है वो क्या पूछेगा, ठीक है। तो वही फॉलो करना जो मैं जस्ट बता रहा हूँ। गैस टरबाइन के मेरे जो स्टूडेंट्स थे, आप उनसे पूछ सकते हो कि वो कितना इजीली पास करते हैं पेपर जाके। प्रीवियस सेशन में गैस टरबाइन नहीं पढ़ाया हूँ, इन दोनों सेशन में मैंने गैस टरबाइन नहीं पढ़ाया है, 2025 में पढ़ाया था, क्योंकि अभी इन दो प्रीवियस सेशन में मैं मॉड्यूल 10 आरटी एंड 11 13 सिस्टम पढ़ा रहा था, तो गैस टरबाइन की क्लासेस नहीं किया। 2025 में किया, 2024 में किया, 2023 में किया, ठीक है। रोल्स रॉयस हाईलाइटेड बाय मी, तो जो मैंने हाईलाइटेड किया है जस्ट वही फॉलो करना है। तो दीज 3 बुक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गैस टरबाइन, यू नीड टू कवर। तो EASA यू नीड टू रीड लाइन टू लाइन, for trigger just follow my highlight, and for Rolls Royce just follow my highlights,
सिंपल है. Now, other books only for few basic study. What you will is you need to cover APU from AL chapter 3-26 and storage of engine EL-3-14 from CAIP 2. तो ये भी मैंने हाईलाइट किया है, वही फॉलो करना है, उसके अलावा कोई नहीं. 12A एंड ANP जिसे बोलते हैं पावर प्लांट, बेसिक टर्म्स यू कैन स्टडी, बेसिक टर्म्स. और लाइक आप बोल सकते हो कि सर स्टोरेज वाले पार्ट्स भी हम पढ़ सकते हैं और एक और वाला पार्ट्स वेट आई शो यू है ना. These parts: engine monitoring and ground operations. For these some modules you have to follow ANP. हेलीकॉप्टर ANP नहीं, हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स वाली जो बुक है जिसे आप 12 बोलते हो, उसको पढ़ना ही पड़ेगा. वहीं पे इसके क्वेश्चंस वहीं से पूछते जाते हैं. यासा में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, यासा में है बट उतना नहीं है. तो हेलीकॉप्टर जो टेबल दिया हुआ है ना वो उसी में है, 12 में ही है. तो यू नीड टू फॉलो दैट, है ना. Again, Otis, just follow my basics. I have marked the Otis. You need to follow that. And few terms from the starter, Kiros and Wilde. I have also uploaded these things in my class drive. So wait, I'll show you. Okay. So this is the highlighted book section which I have highlighted, है ना, when I was preparing for the gas turbine. And I am also giving this drive for class, मतलब club to the class student. ठीक है. तो this is the YASA. Here you can access the YASA. ठीक है. तो I have broke the YASA into two parts, part 1 and part 2, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका वो हो जाता है, समझ रहे हो ना. लोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आई हैव मार्क्ड, बहुत ज़्यादा मार्क किया है. ठीक है. तो मार्किंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा इसका लोड होने लगता है, वेट कर रहा है बहुत ज़्यादा. ठीक है. तो डाउनलोड नहीं होता इजली. तो दैट्स वाई आई हैव सेपरेट इनटू टू पार्ट्स. ठीक है. एंड Otis, I have updated this क्वेश्चंस फ्रॉम द Otis, है ना, कि वहाँ से इन्होंने क्या क्या पूछा क्या नहीं पूछा. तो मैंने यहाँ पे अपडेट किया है. Otis के पेजेस अपडेट है यहाँ पे. ये जो रेफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, these आर टेकन फ्रॉम द Otis. तो आप इनको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चंस, लाइक ये वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं, इफ़ यू आर नॉट अ फ्रेशर यू हैव अटेम्प्ट, तो आपको पता होगा कि ये मोटरिंग वाले क्वेश्चन पूछते हैं. तो ये Otis से ही डायरेक्टली पूछ रहे हैं. तो अब एक इन क्वेश्चंस के लिए क्या आप पूरी Otis पढ़ने की जरूरत है? नहीं पढ़ने की जरूरत है. तो यू नीड टू जस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर पेजेस और पर्टिकुलर रेफरेंस पेज, है ना. तो आई हैव अपलोडेड ऑल Otis रेफरेंस पेजेस. यहाँ पर डायरेक्टली जाके पढ़ सकते हो. तो मैं अपने लिए किया था, वही स्टूडेंट्स के लिए भी शेयर कर देता हूँ. ठीक है. तो वो सारा पेजेस मैंने अपलोड कर दिया जो Otis में दिया है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर्स. तो जो जो इम्पोर्टेंस है Otis से वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया. ठीक है. तो दिस इज फॉर फ्रॉम द Otis एंड दिस इज फ्रॉम द रोल्स रॉयस. तो वो जितने इम्पोर्टेंट पेजेस हैं जो रेफरेंस मैटर करते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो सब अपडेट किया. ये मत कहना कि सर आपने किसी से कॉपी किया. भैया कॉपी मैं किसी से नहीं करता, सब मेरी खुद की मेहनत है. ठीक है. तो जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द गैस टरबाइन आई डिड, ठीक है, तभी मैंने ये सारा किया था. तो ये सारा मेरा ही मार्क्ड है, किसी और का नहीं है, ये सब मेरा ही मेहनत है. ठीक है. तो ये सारा, जैसे कि अभी सील वाले जितने क्वेश्चंस आते हैं सब डायरेक्टली यहीं से पूछा जाता है. रिंग सेल, है ना, कार्बन सील, हाइड्रोकार्बन सील, ब्रूस सील, ये सारे क्वेश्चन आते हैं. इफ यू हैव अटेम्प्ट द पेपर तो आपको पता ही होगा कि हाँ सर ये तो सारे क्वेश्चन आते हैं. तो ये यहाँ से आते हैं, रोल्स रॉयस से. अब जब तक नहीं पढ़ोगे फिर करेक्ट मार्क कैसे करोगे? यासा में ढूंढते रह जाओगे जिंदगी भर, उसमें कुछ नहीं मिलेगा. तो फॉर दीज क्वेश्चंस यू नीड टू फॉलो द रेफरेंस बुक ना. ये नहीं कि बस यासा से हो जाएगा, नहीं. यासा इज द वेरी कोर बुक, वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज द मेजॉरिटी क्वेश्चंस they were asking from the YASA, approx 45 to 54 question.
है ना, मेजॉरिटी रेंज यही है। और 12 क्वेश्चंस दे विल आस्क फ्रॉम द एरविन ट्रेगर, और बाकी क्वेश्चंस रोल्स रॉयस, ओटिस एंड अदर रेफरेंस बुक जो मैं बता रहा हूँ, किरोस एंड विल्डे, इन सब से पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आई हैव अपडेटेड दिस थिंग्स फ्रॉम द रोल्स रॉयस, है ना। तो ये पेजेस है। एंड देन ट्रिगर, आई हैव आल्सो अपलोडेड द ट्रिगर, बट ट्रिगर में मैंने क्या किया, मैंने मार्क्ड किया है। तो ये मैंने अपना हाईलाइटेड, मैंने ये भी, ट्रिगर भी बहुत लेंदी हो जाता है, तो आई ब्रोक दिस बुक इनटू 2 पार्ट्स एंड यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो ये भी हाईलाइटेड, ये मैंने मार्क किया है। और अगर आप पूरा ओटिस पढ़ना चाहते हो कि नहीं सर मैं बस 4 पेज पढ़ के नहीं पास होऊंगा, तो आपको लगता है ऐसा, बट ऐसा मैं रेफर नहीं करता हूँ। तो जो मैं आपको गाइड करूंगा जस्ट उतना ही फॉलो करना, उससे ज़्यादा फॉलो करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई हैव ऑल्सो हाईलाइट द ओटिस, ठीक है। तो वो पढ़ सकते हो अगर आप चाहते हो, बट ऑलरेडी आई हैव टेकन आउट द इम्पोर्टेंट रेफरेंस फ्रॉम द ओटिस बुक, तो डायरेक्टली वही पेजेस पढ़ सकते हो। अदरवाइज ये पूरा पढ़ना है बुक तो पढ़ लो, मैंने हाईलाइट किया है, कोई इशू नहीं है। तो इट्स ऑन यू, बट मैं गाइड आपको रेफर करने को नहीं बोलता हूँ कि जस्ट रेफर द ओटिस। आई गाइड आई गाइड 15, there is a two book only for 15 which is very important, IASA and Erwin Trigger. After that just follow the Rolls Royce. These three books is the very important, you will clear the paper, है ना। बाकी प्रीवियस ईयर से थोड़ा एक दो इधर उधर क्वेश्चन आ रहे हैं, रेफरेंस जाके आप ढूंढ ढूंढ के पढ़ लो, बस इतना ही करना है। सारे 5-6 किताबें नहीं पढ़ना है, फिर नहीं पढ़ पाओ, ठीक है। देन ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आफ्टर दैट ये 12 का हाईलाइट है, तो ये आप देख सकते हो। जो मैं चैप्टर बता रहा था, इंजन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन, बताया ना कि केवल दीज फॉर पर्टिकुलर सम मॉड्यूल यूनिट टू फॉलो द 12 है, तो वही चैप्टर है। तो ब्रेक करके निकाला, आपको पढ़ लेना है। कैप को जो हाईलाइटेड बोल रहा था, एपीयू एंड इंजन स्टोरेज, यहाँ पे पढ़ लेना है। अब यासा के यहाँ पे सारे क्वेश्चन है, ये तो मिल ही जाते हैं आपको, ठीक है। तो ये मेरा वर्क नहीं है, मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, ये किसी स्टूडेंट्स ने दिया था, तो मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये सब बनाया हुआ है। फा का मैंने हाईलाइटेड निकाला हुआ है, 12 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आई हैव टेकन आउट फ्रॉम दैट पेजेस, है ना, फ्रॉम दिस बुक। एंड क्रियस एंड विल्डे के भी मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो these pages are from the Curious and Wilde. तो I have taken the important pages, like क्या important है कि सर what is the film cooling and convection cooling, transpiration cooling, you will not get it from the IASA, क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं डिफाइन है। आप ढूंढते रह जाओगे, कन्वेक्शन कूलिंग नहीं मिलेगा आपको, आपको फिल्म कूलिंग नहीं मिलेगा, कन्वेक्शन कूलिंग फिल्म कूलिंग नहीं डिफाइंड है कि व्हाट इज दिस, एंड ट्रांसपिरेशन कूलिंग नहीं डिफाइंड है, आपको अदर बुक में नहीं मिलेगा, ये इसी में मिलेगा, केवल किरोस एंड विल्डे में ही मिलेगा। तो अब इस 2 क्वेश्चन के लिए क्या पूरा किरोस पढ़ोगे, नहीं ना भाई, जो मैंने बता दिया बस उतना ही पढ़ो ना, पास हो जाओगे, ठीक है। जैप्सन में भी मैंने टेक्स्ट को कुछ एक्सट्रैक्ट किया है बुक को, तो यहाँ पे लिखा है कि जैप्सन टेक्स्ट बुक चैप्टर 3, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस मुझे लग रहा था कि बन रहे हैं, तो वो पॉइंट्स को भी आई हैव टेकन आउट, ठीक है। लाइक मोटरिंग वॉश, है ना, इंजन ट्रिमिंग, है ना, ये सब यासा में दे वर नॉट डिफाइंड वेरी वेल, है ना। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन फ्रॉम जैप्सन, लाइक EGT टैकोमीटर चेक, या व्हाट इज द जेट कैलिब्रेशन टेस्ट यूनिट, जेट कैल एनालाइजर, व्हाट इज द जेट कैल एनालाइजर, पूछ लेगा, ढूंढते रह जाओगे यासा में, यू विल नेवर फाइंड आउट फ्रॉम द यासा और एरविन ट्रेगर और रोल्स रॉयस, मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो फिर कैसे टिक करोगे। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू रेफर अदर बुक्स आल्सो, है ना, और चेक भी करना पड़ेगा कि अब एक दो क्वेश्चन के लिए, अब ये नहीं है कि मैं पूरा बुक पढ़ना है। अब लाइक एक्यूमुलेटर्स का कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड किया था, तो आई हैव दिस एडेड दिस पॉइंट्स, है ना। तो यू कैन चेक, है ना, ये सारे चेक पॉइंट्स है जो जैप्सन आई हैव टेकन आउट, देयर आर 49 पेजेस, है ना। अब क्या होता है ना कि बहुत लोग होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता, बट यासा बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं और एरविन ट्रेगर नहीं पढ़ता है। तो आई हैव एक्सट्रैक्टेड द इम्पोर्टेंट पेजेस फ्रॉम एरविन ट्रेगर आल्सो, कि अगर आप एरविन ट्रेगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इन पेजेस को पढ़ के चले जाओ तो भी हो जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम है तो यू नीड टू रीड द एरविन ट्रेगर हाईलाइटेड बाय मी, है ना। तो देयर आर 65 पेजेस from the Erwin Dragon I have taken out, which is the very important for the gestapen examination, है ना।
तो यू नीड टू फॉलो दिस, ठीक है। इतना भी कर लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप पूरा कॉन्सेप्चुलाइज समझ के पढ़ रहे हो तो एक अलग चीज़ है। आप केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो भाई वो तो रट रट के पास हो नहीं जाना है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। एंड यू कैन ऑल्सो वॉच द, यू कैन चेक हियर द रोल्स रॉयस, है ना। तो रोल्स रॉयस का भी मैंने सेपरेट किया है, वो पेजेस भी था और मैंने एक्स्ट्रा इन्होंने यहाँ से भी किया। ये 22 पेजेस है फ्रॉम द रोल्स रॉयस, है ना। तो आई हैव मार्क्ड कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और दे हैव क्या। जैसे रोल्स रॉयस हम क्यों फॉलो करते हैं, रोल्स रॉयस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो आपके आफ्टर बर्नर, आफ्टर बर्नर, ठीक है। आफ्टर बर्नर वाला जो क्वेश्चन है ये सब रोल्स रॉयस से एग्जैक्टली लाइन टू लाइन पिक करता है। यासा में है बट यासा में उतना परफेक्ट नहीं है आफ्टर बर्नर, ठीक है। तो आफ्टर बर्नर का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से कंसेप्चुलाइज करके दे हैव रिटन हियर, मतलब थियरी इज अ वेरी वेल डिफाइंड इन द रोल्स रॉयस। अगर आफ्टर बर्नर आप यासा पढ़ोगे तो वहाँ पे उतना बेटर नहीं है, ठीक है। या वाटर इंजेक्शन, ठीक है। तो रोल्स रॉयर बहुत अच्छे से डिफाइन किया है वाटर इंजेक्शन एंड आफ्टर बर्नर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कभी मिस नहीं करना है रोल्स रॉयस फॉर दीज 2 पॉइंट्स, है ना। तो मैंने रोल्स रॉयस बस मोस्टली इन्हीं के लिए प्रेफर किया था, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने ऐड किया भी है। ऐसा नहीं है कि बस वही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैंने ऐड किया है। बट मेरे को सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेरा अटक रहा था वो इसी का था, आफ्टर बर्नर एंड आपका वाटर इंजेक्शन। बस यही नहीं समझ पा रहा था यासा एंड एरविन से, क्योंकि एरविन में उतना एक्सप्लेनेटरी है नहीं, जानते हो एरविन कैसे डिफाइन करता है, बहुत कॉम्प्लिकेट होता है एरविन को समझना, ठीक है। एंड यासा तो बेसिक है, तो वो बहुत ही बेसिक है, वो भी उतना आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं कर पाता। तो यू नीड टू फॉलो दिस थिंग्स, है ना। तो दीज आर द ऑल बुक्स, है ना, जो आपको मिल जाएगा। यू नीड नॉट फॉलो रतन मौर्य, इफ़ यू फॉलो माई थिंग्स यू नीड नॉट फॉलो रतन मौर्य। कोई ज़रूरत नहीं है आपको फॉलो करने की, मैंने नहीं फॉलो किया, मैंने अपने किसी भी पेपर के लिए रतन मौर्य नहीं फॉलो किया है। रेफरेंसेस यहाँ पे अपलोड किया हूँ कि और भी जैसे ग्रुप्स में आते हैं रेफरेंसेस, जिनके रेफरेंस मिलते नहीं है, तो वो एक पीडीएफ है पूरा रेफरेंस वाला, ये जनरली मिल जाता है, आप लोग के पास भी होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो मैंने सारे सॉल्व किए थे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे को क्या सही लगा, तो ये सारे सॉल्व पीडीएफ अपडेट किए थे। बाकी जो रिसेंट वाले जो पीडीएफ होंगे वो आपको बेसिक ड्राइव में मिलेंगे, जो सबके पास एक्सेस रहता है जनरली, तो सारे पीवाईक्यूज वहाँ पे मिलेंगे, तो हम लोग वहाँ से, और जो सॉल्व नहीं है वो वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो वो चीज़ें को, तो दिस आर द ऑल होल थिंग्स फॉर द गैस टरबाइन, है ना। नाउ कितना टाइम हुआ, 8:43, ठीक है। नाउ वी विल गो थ्रू द 66 और उसके बाद जल्दी से हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, है ना, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। तो अभी 66 चेक कर लेते हैं सिलेबस, उसके बाद, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको सिलेबस बता दिया, उसमें ज़्यादा कुछ अभी मेरे को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। तो दिस इज़ द गैस टरबाइन, ठीक है। एंड अब जनरली हाउ यू कैन प्रेफर एरविन एंड यासा। तो these two books book is a very important to read with the same time. Like if you read fundamental from the Yasa, then read the fundamental with the Erwin. If you read the engine performance from the Yasa, then go again with Erwin. I followed that sequence, है ना, कि मैं सेम चैप्टर सेम पढ़ रहा था। अगर ऐसे नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इतने सारे डाउट्स बन जाते हैं। जैसे ही आप पूरा यासा कंप्लीट करके एरविन में आप एंट्री करते हो फिर पूरा बर्डन आ जाता है, फिर आपको माउंटेन दिखता है कि हमने जो भी पढ़ा यासा में, मैं कुछ नहीं समझा यासा में, फिर आपको यही लगता है यासा पूरा पढ़ लिया फिर भी हमें कुछ अब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एरविन तो दूसरी दुनिया में बात कर रहा है ना। तो यू आर थिंकिंग लाइक एरविन इज टीचिंग गैस टरबाइन इन अदर वेज, है ना, तो समझ नहीं पाओगे फिर। तो यू नीड टू फॉलो दैट सीक्वेंस, इफ यू आर रीडिंग द यासा देन फॉलो द एरविन साथ साथ। अगर आप साथ साथ नहीं करो तो नहीं कर पाओगे। लाइक इफ यू रेड द इनलेट, तो जस्ट रेड इनलेट फ्रॉम द यासा देन फॉलो एरविन, देन अगेन रेड इनलेट फ्रॉम द कंप्रेसर देन रेड अगेन एरविन, तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा, तभी तो आप फेल हो जाते हो,
कितना भी पढ़ के जाते हो, क्योंकि आप अपने अपने डाउट्स नहीं बना पाते हो, ना क्लियर कर पाते हो, आपको पता ही नहीं होता क्या पूछ रहा है वो फिर। तो यू नीड टू कंपेयर द थिंग्स। हमें केवल रटना नहीं है कि एरविन में ये दिया यासा में दिया, वी नीड टू कंपेयर कि व्हाट दे हैव मेंशन इन द यासा अबाउट द कंप्रेसर एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कंप्रेसर इन द एरविन ट्रिगर। देयर आर अ मेजर डिफरेंस, ठीक है। इसमें लाइन अलग है, इसमें लाइन अलग है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस। हमें पूरा एरविन रटना नहीं है, हमें डिफरेंस बस पढ़ना है कि एरविन में क्या डिफरेंस लिखा है जो इसमें नहीं है, बस वही तो पढ़ना है। दैट्स व्हाई यू नीड टू फॉलो एरविन एंड यासा साथ, है ना। अगर साथ में नहीं कर रहे हो तो फिर ये पेपर बहुत मुश्किल हो जाता है पास करना, ठीक है। आई फॉलो दैट सीक्वेंस, और इसी सीक्वेंस में मैं क्लास में ही पढ़ाता हूँ कि लाइक अगर मैं अब फ्यूल आपका ये पढ़ा रहा हूँ, लाइक ये सारे चैप्टर तो साथ में भी पढ़ना ही पड़ता है, लाइक कॉम्बशन पढ़ा रहा हूँ, देन कॉम्बशन के साथ फिर एरविन का कॉम्बशन कवर करता हूँ ऐसे। तो मेरे प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी देखोगे या किन्हीं से पूछ लोगे जिन्होंने पढ़ा है मेरे से, वो बता देंगे कि हाँ ऐसे ही सर ने पढ़ाया है। तो एरविन और यासा हम लोग साथ कवर करते हैं। बाकी रोल्स रॉयस तो पूरा पढ़ना नहीं है, तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं बस वो पढ़ते हैं रोल्स में, ओटिस में भी बेसिक, बाकी सब में बेसिक बेसिक, कैप भी बेसिक पढ़ते हैं। बट ये दो बुक हम लोग पूरा साथ में होल कवर करते हैं लाइन टू लाइन, है ना, विद फंडामेंटली और कंपेयर करके। ये नहीं कि बस हवाबाजी करना नहीं है, फिर तो टाइम पास हो जाएगा ना। 1 मिनट में, क्योंकि ये अब मेरा गला सूख गया है, तो मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ आई थिंक। और दूसरी पॉइंट है यू नीड टू कीप पेशेंस। पेशेंस बहुत रखना पड़ता है गैस टरबाइन के लिए, क्योंकि इफ़ यू आर अ फ्रेशर फॉर द गैस टरबाइन, वन रीडिंग में आपको समझ नहीं आता, है ना। और फिर वही जब सीक्वेंस आप फॉलो नहीं कर रहे हो कि यासा एंड ट्रिगर आप नहीं देख रहे हो, तो फिर तो बिल्कुल नहीं समझ में आता। बट जो थोड़े एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एक दो बार पढ़ लिया है, तो वो थोड़ा समझ भी पाते हैं कि चलो ठीक है ये एरविन में ये दिया, यासा में ये दिया। बट जब आप कंपेरिजन करके पढ़ लेते हो ना, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है गैस टरबाइन, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से बन जाता है, ठीक है, मुश्किल नहीं होता है। तो हमें ना हर एक मॉड्यूल के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फिर वही हमारा फेलियर बनता है, ठीक है। फिर हम अपनी गलतियाँ नहीं पकड़ पाते, फिर हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं, क्या मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, ठीक है। और हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, बट वी फेल्ड, ठीक है। तो मेरे पास अब बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, और वो लोग बताते हैं सेम थिंग कि सर आई फेल्ड 4 टाइम्स, आई फेल्ड 3 टाइम्स। तो मैं एक बेसिक सेशन भी लेता हूँ अभी तो, और आई थिंक दिसंबर सेशन से ही मैं फ्री सेशन लेने लग गया हूँ आफ्टर एग्जामिनेशन, कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है नेक्स्ट सेशन के लिए। तो वो फ्री इनिशिएटिव इसीलिए स्टार्ट किया था कि गाइड करो, ताकि जो भी फ्रेशर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाए कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। केवल पीडीएफ में एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होता। तो मैंने रोड मैप तो बनाया है, बट लोग वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, और ना ही वो अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। तो इसलिए फ्री सेशन लेना शुरू कर दिया कि एवरी सेशन से पहले एक फ्री सेशन रखता हूँ, और ये 3 सेशन से मैं कर रहा हूँ ताकि लोगों का हेल्प होगा। उसमें मेरा क्या ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, अपना टाइम जाता है वैसे भी। और एम्प्लॉयड पर्सन कितना क्या कर सकता है आपके लिए। The first chapter is the some module 01 is the talking about the potential kinetic energy neutral of motion Brayton cycle. तो our gas turbine working on that cycle, है ना, जो जीटी बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ब्रेटन साइकिल पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। तो ये इन सब में हम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे याद रखना है इनको। एंड टर्बो जो जेट एंड टर्बो फैन एंड टर्बो प्रोप एंड टर्बो शाफ्ट, तो हमारा बेसिक क्या है। अब देखो अब मैं पोटेंशियल एनर्जी आपको बताऊंगा नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट पोटेंशियल काइनेटिक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, दिस आर द वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है। तो वी विल स्किप, बट क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं। तो क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे, बट अभी आज के सेशन में डेमो में ये सब बेसिक बेसिक पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर, और दिस डेमो विल बी नॉट इफेक्टिव, है ना। तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा आपको कि सर अरे सर ये सब पढ़ा हुआ है, अब मैं आपको बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ाऊँ, तो दिस विल नॉट गोना मेजर
थिंग्स, है ना, कि आप क्या ही पढ़ा रहे हो, आप भी बोलोगे कि सर क्या ही पढ़ा रहे हो, आप कुछ अच्छा थोड़ी पढ़ा रहे हो, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी विल start the general requirement like the fundamental structures of the engines. तो उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द इंजन पाएंगे तो टरबाइन इंजन एंड बाईपास रेशियो एंड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं वो मैं बताऊंगा कि फ्यूल कंजप्शन में एंड थ्रस्ट में क्या डिफरेंसेस है। तो ज़्यादा बात करते नहीं हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और मैं आपको ये सब बेसिक बेसिक जो मैं बताऊँ तो ये सब कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जेट में, और सारे इंजन्स में कंपेयर करके किन की एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, विद रेस्पेक्ट टू जिसे TFSC आप बोलते हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंजन। तो फॉर द गैस टर्बाइन these are the consisted parts like inlet, compressor section, combustion section, turbine section, exhaust section and accessory section, और लास्ट वन द स्टार्टिंग लुब्रिकेशन, फ्यूल एंड एक्सेलरी एंड एंटी आइसिंग एंड कूलिंग प्रेशराइजेशन। तो ये दीज आर द बेसिक कंपोनेंट, है ना, जो इन्होंने बताया कि कंसिस्टेड पार्ट्स में, है ना। उसके बाद इंजन टाइप्स इन्होंने डिफाइन किया, देन बाईपास रेशियो डिफाइन किया, तो हम लोग अभी इस पे भी नहीं आए, है ना। तो हम लोग आ जाएंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ द इंजन, टर्बोफैन। तो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द इंजन, और ये इंजन्स कैसे इनका इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन ऑफ द इंजन्स, ठीक है, इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा। देन ये सारे इंजन्स बताऊंगा वन बाय वन करके कैसे आते हैं फील्ड में, और फिर इनमें डिफरेंसेस क्या है, क्यों हमने फैन पर लगाया, क्यों हमने बाईपास लगाया, क्यों हमने वाटर इंजेक्शन किया, क्यों हमने आफ्टर बर्नर लगाया, ये सारी चीज़ें मैं कंपेयर करके बता दूंगा आज के क्लास में, ठीक है। तो पेशेंस रखना, लेंदी हो जाएगा क्लास, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने में, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया थियोरेटिकल चीज़ें बताने में एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने में, है ना। 1 आवर तो आई थिंक उधर लग गया मेरे को, है ना। तो फर्स्टली जब आपके फील्ड में जो फर्स्ट इंजन आता है वो आता है इंजन टर्बोजेट। द फर्स्ट इंजन वाज द टर्बोजेट। अब हम देखो पिस्टन इंजन की हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर पहले तो पिस्टन इंजन आया था, तो हम उसकी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, तो हम जेट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम केवल जेट की बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली यू नीड टू नो अबाउट कि देयर इज अ टू टाइप ऑफ द इंजन, thrust producing engine and torque producing engine. So there are two type of the engine, thrust producing and torque producing. Thrust producing engine is the fan engine and jet engine. Torque producing engine is turboprop engine and turbosoft engine. अब मैं सारी अभी मैं बेसिक आपको ये क्लासिफाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं थियरी में सारी चीज सब एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों इनको थ्रस्ट बोल रहे हैं, क्यों इनको टॉर्क बोल रहे हैं, सिंपल है। तो अभी बेसिकली आप समझ गए कि देयर आर टू टाइप ऑफ द इंजन, थ्रस्ट एंड टॉर्क प्रोड्यूसिंग इंजन, है ना। तो फर्स्ट इज अ टर्बोजेट इंजन। देयर इज अ different compartments like intake, these are the intake, these are the compressor section, these are the combustion chamber, and this is the turbine section and this is the exhaust. अब ये इंजन कैसे काम करेगा, हम लोग इंजन स्टार्टिंग की बात नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे बात करेंगे। ये इंजन काम कैसे कर रहे हैं हम लोग उस पर बात करें। तो इंजन इनटेक हमारा एयर इनटेक हुआ, सिंपल है। देन कंप्रेसर विल कंप्रेस द एयर, तो कंप्रेसर कंप्रेस कर रहा है एयर का, तो टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस। अब ये एयर आता है कंबशन चैम्बर में, देन कंबशन चैम्बर में एयर प्लस फ्यूल विल बी मिक्स, एंड फ्यूल एंड एयर जैसे मिक्स होगा तो यहाँ पे हमारे स्पार्क प्लग लगे हुए हैं जिसे हम इग्नाइटर प्लग बोलते हैं, जीटी में इग्नाइटर प्लग है, तो इग्नाइटर प्लग लगे हुए हैं। देन इग्नाइटर प्लग स्पार्क देंगे जिसकी इग्नाइट करेगा, देन हमारा यहाँ बर्निंग होना शुरू हो जाएगा, सिंपल है। जैसे बर्निंग शुरू होता है तो ये जो एयर होता है वो स्ट्राइक करता है टरबाइन को, ये बेसिक प्रिंसिपल है, क्योंकि कुछ लोग फ्रेशर है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो अब ये स्ट्राइक करता है क्योंकि ये कॉम्प्रेस्ड, हाईली कॉम्प्रेस्ड एयर हो गया। अब जस्ट थिंक अबाउट दैट कि क्या हुआ कि एक चैम्बर है और यहाँ पे एयर क्या है, कॉम्प्रेस्ड है। अब इसमें आप हीट एडिशनल ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। अब ये जब एनर्जी हाई होगा तो ये डायरेक्शन मांगेगा कि हमें कहीं ना कहीं जाना है, तो अब इनके पास और कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्शन के, क्योंकि इधर ये जा नहीं सकते क्योंकि इधर ये कंप्रेसर है, क्योंकि ये अगेन इनलेट कर रहा है, एयर को कंटिन्यूअस ऐड कर रहा है, तो इनके पास अब इधर जाने का ऑप्शन नहीं है। इनके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि इधर से कोई रिएक्शन नहीं है, टरबाइन की तरफ से हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिपल्सन फोर्स नहीं है,
तो सिंपली ये इजिली विल स्ट्राइक ऑन द टरबाइन, और जैसे ये टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा टरबाइन रोटेट होने लग जाएगा और दे विल डिस्चार्ज ऑल द एनर्जी ऑन द टरबाइन, और यहाँ पे फिर ये एयर एग्जॉस्ट हो जाएगा। सिंपल। तो जो भी आपने हीट ऐड किया एयर एंड फ्यूल मिक्सर में, वो किसको मिल गया? टरबाइन को। तो वो सारी एनर्जी किसको मिल गई? काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को मिल जाती है, और फिर वो एयर हमारा एग्जॉस्ट से बाहर आ जाएगा। दिस इज द बेसिक थिंग्स या वर्किंग प्रिंसिपल ऑन फॉर द गैस टरबाइन। यही चल रहा है, एयर जो एयर पे वर्क चल रहा है हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। बट अब हमने ये देखा, जब हमने इंजन ये डिफाइन किया तो हमने ये देखा कि अब टरबाइन पे एयर को गाइड करना पड़ेगा। दैट्स वाई वी यूजेज इनलेट गाइड वेन, इनलेट गाइड वेन। क्योंकि टरबाइन पे अब क्या होगा, जब यहाँ पे ये तो फ्री एयर है ना, ये तो किसी भी डायरेक्शन पे स्ट्राइक कर सकती है। इसके हब पे स्ट्राइक कर सकती है, यहाँ पे जो हब है, शाफ्ट का हब है, उस पे स्ट्राइक कर सकती है, रूट पे कर सकती है, टिप पे कर सकती है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने आईजीबी लगाया कि वी वांट अ प्रॉपर एंगल, स्ट्राइक एंगल। तो आईजीबी लगाया, उनको एक गाइड किया कि देखो तुमको इसी एंगल पे स्ट्राइक करना है टरबाइन पे, तभी हम मैक्सिमम एनर्जी यूज कर पाएंगे एयर का और टरबाइन को रोटेट कर पाएंगे। सिंपल है। तो आईजीबी लगाया और हमने ऐसा किया, देन ये एयर एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, दिस इज द बेसिक। एक मिनट। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया आपका। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको जेट क्यों बोला गया। अब आप देखते हो कि सर आपने एयर इनटेक किया एंड देन कंप्रेस किया, आफ्टर कंप्रेशन ऑफ एयर बर्निंग हुआ एंड हमें ये एयर एक्सट्रैक्ट हो गया, बाहर हो गया, ठीक है, एग्जॉस्ट हो गया। हमें थ्रस्ट कैसे मिल रहा है, यही समझना है हमें। टरबाइन चल रहा है तो क्या होगा, टरबाइन चल रहा है तो ये शाफ्ट रोटेट हो गई, ये शाफ्ट रोटेट हो गई, तो इसी शाफ्ट पे लगा हुआ कंप्रेसर है तो कंप्रेसर चलता रहेगा, कंप्रेसर कंटिन्यूअस चलता रहेगा तो एयर इनटेक बना रहेगा। यही हमारा गैस टरबाइन का प्रिंसिपल है। टरबाइन को इसीलिए रोटेट करा रहे हैं एयर से। तो टरबाइन को रोटेट कराया तो टरबाइन, बिकॉज टरबाइन हैव इंस्टॉल्ड ऑन द सेम शाफ्ट विद द कंप्रेसर, तो टरबाइन अगर रोटेट हो रहा है तो कंप्रेसर भी रोटेट होता रहेगा, और कंप्रेसर रोटेट होता रहेगा तो एयर इनटेक बना रहेगा, कंटिन्यूअस एयर मिलता रहेगा इंजन को। ये एक बेसिक जेट इंजन के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमें थ्रस्ट कैसे मिला, अब आप हम बात करते हैं थ्रस्ट पे। थ्रस्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे एग्जॉस्ट पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, कन्वर्जन कर दिया, कन्वर्ट डक्ट बना दिया, है ना। तो हमने यहाँ पे कोन बना दिया जिसकी वजह से थ्रस्ट मिल रहा है, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है, आप समझ रहे हो। तो हमने यहाँ पे जैसे ही कोन शेप में एग्जॉस्ट को बनाया, इससे हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि वेलोसिटी हायर हो गया, ठीक है, और प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो हायर वेलोसिटी हुआ तो जितना ज़्यादा हायर वेलोसिटी से हमारा एयर एग्जॉस्ट हो रहा है, उतनी ही वेलोसिटी से हमें मोमेंटम मिलेगा, रिपल्शन भी मिलेगा। अब यहाँ पे न्यूटन का लॉ आ जाता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जितना एक्शन करोगे उतना ही रिपल्शन भी मिलेगा, रिएक्शन भी मिलेगा। तो जो जिस मोमेंटम से एयर को आप एग्जॉस्ट कर रहे हो, सेम मोमेंटम हमारे इंजन को भी मिलना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा हमें, उसी मोमेंटम से हमारा इंजन आगे बढ़ता है। और क्योंकि इंजन कनेक्ट है, इंस्टॉल्ड है विद द पायलन टू द एयरक्राफ्ट, तो पूरा एयरक्राफ्ट को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। सिंपल है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अब समझना, यहाँ पे हम केवल जेट इंजन की बात कर रहे हैं, तो अब आपको समझ में आता है कि सर यहाँ पे मैक्सिमम एयर कब मिलेगा, जब मैक्सिमम एयर यहाँ से इनलेट होगा। सिंपल है। तो यहाँ पे मैक्स एयर, तो यहाँ पे मैक्स एयर। मोमेंटम क्या होता है, आप बोलते हो सर मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी, दिस इज द मोमेंटम। तो मोमेंटम कैसे मिलता है, मैक्सिमम एयर हो या मैक्सिमम वेलोसिटी हो, कोई भी मैक्सिमम होगा तो मोमेंटम मिल जाएगा। तो हम एयर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, एक लिमिट तक ही एयर इंजन में भेज सकते हैं, जितना इंजन की कैपेबिलिटी है या वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशन है, उतना ही एयर भेज सकते हो आप इंजन में। तो सिंपल है, हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल है।
तो वेलोसिटी जितना इंक्रीज होगा उतना मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। इन दोनों में से कोई भी इंक्रीज कर लो, या तो मास या तो वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी बढ़ा दिया, ठीक है। अब वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा, तो आपको समझ में आता है सर वेलोसिटी तभी बढ़ सकता है जब हीट एनर्जी ज्यादा होगा। हीट एनर्जी ज्यादा नहीं होगा तो वेलोसिटी होगा नहीं होगा, सिंपल है। हीट एनर्जी ज्यादा कब होगा, जब फ्यूल होगा। फ्यूल बर्न करोगे, क्योंकि एयर तो बर्न नहीं होगा ना, एयर कितना ही बर्न करोगे, एयर तो बर्न नहीं होता, उसमें फ्यूल तो चाहिए ही चाहिए, तो मैक्सिमम फ्यूल चाहिए। तो मैक्सिमम थ्रस्ट के लिए मैक्सिमम फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, दिस फॉर दैट पर्टिकुलर इंजन, जेट इंजन। इसीलिए ये इंजन बहुत ही ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, क्योंकि इस इंजन में जितना ज्यादा फ्यूल जलाओगे, बर्न करोगे, उतना ही ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा। अगर फ्यूल आपने कम जलाया तो थ्रस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जेट इंजन। अब प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम क्या आने लगी कि भाई हम तो एयरलाइन रन कर रहे हैं। अब समझना, हम क्योंकि इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो मैं इवोल्यूशन पढ़ा रहा हूँ आपको। एयरलाइंस पे हम बात कर रहे हैं, एयरलाइंस को कह रहे हैं कि सर हम ये बहुत ही ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, ऐसे में हमारी एयरलाइंस नहीं चल सकती, एयरलाइंस गिर जा रही हैं, है ना। उनको, उनके पास बैकअप नहीं है, इकोनॉमी नहीं है एयरलाइंस का, क्योंकि फ्यूल से ही तो इकोनॉमी आएगी, फ्यूल बचाओगे तभी इकोनॉमी बचेगी, और फ्यूल में ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो कैसे चलेगी एयरलाइन। तो वी नीड टू सेव द फ्यूल, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा उसी पे है, ठीक है। तो दिस इंजन इज नॉट वेरी एफिशिएंट फॉर द कॉमर्शियल एयरलाइंस। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं हुआ उस टाइम में जब इसको बनाया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, कैसे होगा। बट वी हैव नो अदर ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम पर्टिकुलर, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो यूज करना पड़ता था। अब एयरलाइन डंप हो जाती थी, मेंस एयरलाइन बंद हो जाती थी, गिर जाती थी, बैंकरप्ट हो जाती थी, ठीक है। तो केवल यही रीजन नहीं था, बहुत सारे रीजन थे, बट कॉमर्शियली ये भी इफेक्ट करता था फ्यूल, हमारा इंजन। जैसे इंडिगो के पास 400 इंजन है ना, 400 इंजन ही, इंजन तो बहुत सारे हैं, 400 अप्रॉक्स एयरक्राफ्ट है, सोचो कितने इंजन है। अगर वो सब में जेट ही लगाओ, जेट इंजन, तो इंडिगो चल पाएगा, इतना प्रॉफिट में नहीं चल सकता। एयर इंडिया चल पाएगी, एयर इंडिया तो बंद हो जाएगी फिर तुरंत। इंडिगो थोड़ा बहुत खींच के चला भी ले क्योंकि वो प्रॉफिट में है, बाकी एयरलाइंस तो खत्म हो जाएंगी, जेट के साथ नहीं चला पाएंगी, ठीक है। तो हमें इवोल्यूशन चाहिए था, हमें नया इंजन चाहिए था। तो फिर मैन्युफैक्चरर ने सोचा और समझा, फिर सोचा कि चलो एक नया इंजन बनाते हैं, तो दे विल प्रोड्यूस द टर्बोप्रोप इंजन। अब इन्होंने क्या किया इसमें, इन्होंने दे इन्होंने मैन्युफैक्चर किया टर्बोप्रोप। अब ये टर्बोप्रोप मार्केट में आया। अब हम टर्बोप्रोप को जेट इंजन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले टर्बोप्रोप का प्रिंसिपल समझेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि टर्बोप्रोप कैसे अच्छा है और क्या प्रॉब्लम है, क्या इनके डिसएडवांटेज है, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएंगे जेट और टर्बोप्रोप का, ठीक है। फिर टर्बोफैन, फिर टर्बोसाफ्ट। टर्बोसाफ्ट इज अ वेरी बेसिक, तो उसमें ज्यादा जाना नहीं है, हम टर्बोफैन, इन्हीं तीन इंजन को मेजरली हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टर्बोप्रोप में क्या होगा, इन्होंने बोला कि देखो हम क्या करते हैं कि जो कोर एरिया है ना उसको हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो वी डिक्रीज द कोर एरिया, है ना, वी डिड। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने शाफ्ट लगा के एक प्रोपेलर लगा दिया, है ना, सेम शाफ्ट पे लगा के एक प्रोपेलर लगा दिया, और हमने बोला कि हम अब कोर में लेस एयर भेजेंगे कंपेयर टू जेटी, गैस टरबाइन, मतलब जेट इंजन, कंपेयर टू जेट टरबाइन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस एयर भेजेंगे कोर में, ठीक है। और हमारा एग्जॉस्ट है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना है। हमने बताया जेट आपके जेट इंजन में कि मैक्सिमम थ्रस्ट हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे एग्जॉस्ट में। आपका क्वेश्चन होता है क्या सर कंप्रेशन सेक्शन पे थ्रस्ट नहीं मिलता है, मिलता है। इनलेट सेक्शन पे थ्रस्ट नहीं मिलता है, मिलता है। कंबशन चैम्बर में थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, मिल रहा है वहां पे भी। टरबाइन सेक्शन पे थ्रस्ट मिल रहा है, मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है थ्रस्ट। हमें ईच एंड एवरी पार्ट्स पे इंजन पे थ्रस्ट मिल रहा है, ईच एंड एवरी पार्ट्स पे, ठीक है, क्योंकि हर जगह रिएक्शन है। और यहाँ पे तो ज्यादा है कंपेयर टू, अगर आप कंपेयर करो कि सर कंबशन चैम्बर में थ्रस्ट कितना मिल रहा है, मैक्सिमम में कंबशन चैम्बर में मेरा थ्रस्ट है, और देखो हम एक्शन यहाँ पे ज्यादा और कर रहे हैं तो यहाँ पे और ज्यादा थ्रस्ट है, तो जितना हम एग्जॉस्ट के नजदीक आते हैं उतना ही थ्रस्ट हमें ज्यादा मिल रहा है। तो हमें ईच एंड एवरी पार्ट्स पे थ्रस्ट मिलता है, और बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको क्लास में, बट उतना टाइम नहीं है, तो हम दूसरे इंजन को अभी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बाकी हमें वो फिर जेट नोजल का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा और जेट नोजल का
फॉर्मूला बताना पड़ जाएगा, जो कि यहाँ इस बुक में यासा में नहीं दिया है, एरविन ट्रेगर में बताऊंगा, तब वो सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे फ्यूल और एयर का वेट भी मैटर करता है थ्रस्ट में। केवल एयर से थ्रस्ट नहीं मिलता कि आपने वेलोसिटी दे दिया एग्जॉस्ट को, उससे थ्रस्ट मिल जा रहा है। फ्यूल और एयर का वेट भी कंसीडर्ड होगा थ्रस्ट के फॉर्मूले में। और जो कोन आपने डिफाइन किया, जो आपने कन्वर्जेंट डक्ट बना दिया एग्जॉस्ट का, वो तो ऑलरेडी ऐड कर रहा है वैल्यू थ्रस्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कंसीडर करेंगे जेट नोजल के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, जिसे चॉक नोजल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चॉक नोजल का पूरा आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो इक्वेशन मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी बेसिकली ये हम इंजन में क्या किए कि लेस एयर भेजेंगे, और इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे लेस एयर भेजेंगे तो यहाँ पे बर्न भी लेस एयर करेंगे और यहाँ पे ये एयर निकल जाएगा। तो इन्होंने पूछा कि सर फिर एडवांटेज क्या है, तो इन्होंने बताया कि हम टरबाइन रोटेट कर रहे हैं, हम बस उतना ही एयर भेज रहे हैं और उतना ही फ्यूल हम बर्न करने रहे हैं जितना से हमारा टरबाइन घूम जाए, हमारा टरबाइन रोटेट हो गया। और टरबाइन रोटेट होगा तो कंप्रेसर रोटेट होगा, तो कंप्रेसर से रिलेटेड शाफ्ट रोटेट होगा तो हमारा प्रोपेलर रोटेट हो जाएगा। तो आप अपने इसमें नया क्या किया, नया ये किया कि हमने इनके साथ में एक प्रोपेलर लगाया। अब प्रोपेलर लगाने से एडवांटेज क्या हुआ ये समझ लो आप। इन्होंने आप देखोगे कि सर प्रोपेलर बहुत ही बड़ा लगाया कंपेयर टू कंप्रेसर्स। इससे ये हुआ कि अगर ये प्रोपेलर एक रिवोल्यूशन भी करता है तो भी लार्ज मास, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर क्या कर रहा है, बाईपास कर रहा है। देख रहे हो आप, क्योंकि प्रोपेलर बहुत बड़ा है तो क्वांटिटी ऑफ एयर बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, बाईपास कर रहा है। बट कोर में देखो एयर हम कितना भेज रहे हैं, कोर में एयर बहुत कम कर दिया हमने। और जेट में हमने कोर में ही एयर ज्यादा भेज रहे थे, क्योंकि जितना बर्निंग करेंगे उतना ही हमारा थ्रस्ट मिलेगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग हो गया। इन्होंने बोला कि हमें थ्रस्ट की डिमांड अभी इस इंजन से नहीं है, हमें थ्रस्ट की डिमांड इस प्रोपेलर से है। प्रोपेलर का आरपीएम जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा लार्ज मास ऑफ एयर को क्या करेगा, बाईपास करेगा। देन इफ दिस प्रोपेलर विल बाईपास द लार्ज मास ऑफ एयर, तो उसके अकॉर्डिंग ही m इंटू वी मिलेगा। तो देखो मास ऑफ एयर ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ एयर कम है, कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया ना। अभी जेट में क्या था, जेट में उल्टा था। जेट में आप बोलोगे सर एयर तो कम ही जाएगा ना, जितना वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशन है इंजन का उतना ही जाएगा जेट में, और फैन का भी सेम कॉन्सेप्ट है, तो उतना ही एयर जाएगा और उसको बर्न करोगे, वेलोसिटी हम बढ़ा देंगे एग्जॉस्ट को कन्वर्जेंट करके, एग्जॉस्ट नोजल को कन्वर्जेंट बना के वेलोसिटी हम बढ़ा देंगे। तो वहां हम वेलोसिटी पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पे हमें वेलोसिटी पे फोकस नहीं करना था। यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं, मास ऑफ एयर, क्योंकि जितना लार्ज मास ऑफ एयर ये बाईपास करेगा उतना ही में थ्रस्ट मिल जाएगा। तो हमें किस पे फोकस करना है, बस प्रोपेलर को रोटेट करना है। तो सिंपल सी बात होती है कि सर जो टरबाइन के पास जितना आरपीएम होता है ना, अगर उतने आरपीएम से प्रोपेलर को घुमा दिया जाए तो प्रोपेलर टूट जाएगा। मींस हमें टरबाइन को ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, हमें कंबशन में इतना ही एयर एंड फ्यूल मिक्सचर बर्न करना है जिससे हमारा टरबाइन चल जाए। और अगर हमारा टरबाइन चल जाता है तो उतनी ही पावर हमारे लिए एनफ है प्रोपेलर को रोटेट करने में, क्योंकि ऑलरेडी हम गियर बॉक्स भी लगा रहे हैं। तो समझ रहे हो, तो हमें ज्यादा बर्न ही नहीं करना फ्यूल, ना एयर बर्न करना है, क्योंकि हमें थ्रस्ट की डिमांड ही नहीं है एग्जॉस्ट से, हमें मतलब ही नहीं है एग्जॉस्ट से यहाँ पे। दैट्स व्हाई दिस इंजन नॉन एज फॉर, जैसे हम बोलते हैं कि हमने कैटेगराइज किया फॉर दिस इंजन कि ये टॉर्क प्रोड्यूसिंग इंजन है। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम बस टॉर्क ले रहे हैं शाफ्ट से, गियर बॉक्स लगाया टॉर्क ले लिया। दैट्स व्हाई दिस इंजन कैटेगराइज इनटू द टॉर्क प्रोड्यूसिंग इंजन। थ्रस्ट की हम डिमांड किए नहीं, काम किए। थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग इंजन हम इसलिए बोलते हैं जब हम इस बेसिक जो हमारा इंजन का कॉन्सेप्ट है इससे हम थ्रस्ट मांगते हैं, बट हम इंजन से थ्रस्ट मांग ही नहीं रहे हैं, हम तो नोजल नीचे कर दिए। केटीआर में देख लो नोजल कैसा है, तो समझ में आता है कि सर यहाँ पे थ्रस्ट जो हमें मिल रहा है, थ्रस्ट का जो हमारा मेजर पोर्शन है या रिक्वायरमेंट है वो किससे है, प्रोपेलर से। तो प्रोपेलर हमें कितना परसेंट थ्रस्ट देगा आप पूछते हो, तो 80 आपके प्रोपेलर वाले बुक में और यासा में 85 to 95% डिफाइंड है, इतना परसेंट थ्रस्ट मिलता है किसे, हमें प्रोपेलर से। और जो 5% का थ्रस्ट होता है अप्रॉक्स, या 10% आप मान सकते हो, 10 या 15% का थ्रस्ट, वो कहाँ से मिलता है, यहाँ से, एग्जॉस्ट से। क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ से भी तो हमें रिपल्सन मिलेगा ना, क्योंकि एक्शन रिएक्शन तो हो ही रहा है ना, आपने फ्यूल एयर मिक्सर बर्न कर रहे हो तो उस पर भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ फॉरवर्ड फोर्स मिल ही रहा है। तो 5 to 10% हमें यहाँ पे मिल गया, बट मेजर हमें फोर्स कहाँ से मिल रहा है, प्रोपेलर से। अब आपको समझ में आता है कि सर ये इंजन तो हमारा हो गया, थ्रस्ट फ्यूल कंजप्शन इसका बहुत लो है, तो टीएसएफसी जो डिफाइंड होता है
कि थ्रस्ट फ्यूल स्पेसिफिक कंजप्शन TSFC, थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन TSFC होता है ना, थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। इसका बहुत अच्छा हो गया, बट इसके लिए TSFC नहीं निकालते हैं, इक्विवेलेंट निकालते हैं, है ना। और एग्जॉस्ट के लिए SS और सॉफ्ट इंजन के लिए SHFC निकालते हैं। तो मैं बताऊंगा ये सब डेटा, बट अभी बेसिक आप समझ लो कि सर इस इंजन में क्या हुआ कि हमने फ्यूल कम बर्न कर दिया। हमें को बस यही चाहिए था ना एयरलाइंस को, कि एयरलाइन को प्रॉब्लम हो रही थी, फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा था जेट में, हमने यहाँ पे फ्यूल कम बर्न कर लिया, हमारा इंजन ही अच्छा हो गया। अब हम कंपेरिजन करते हैं, क्योंकि एयरलाइन की डिमांड ये थी कि भाई हमें लॉन्ग सेक्टर रन कर रहे हैं, लॉन्ग सेक्टर रन कर रहे हैं, लॉन्ग सेक्टर, लॉन्ग सेक्टर के लिए वो इंजन इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा चलाओगे तो इंजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एफिशिएंसी, बेयरिंग एफिशिएंसी, प्रोपेलर एफिशिएंसी सब खत्म हो जाएगा जल्दी, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगने लग जाएगा। तो लॉन्ग सेक्टर मीन्स लॉन्ग आवर की फ्लाइंग हम नहीं कर सकते इस इंजन से। छोटे छोटे सेक्टर कर सकते हैं, डोमेस्टिक सेक्टर्स कर सकते हैं, इंटरनेशनल सेक्टर्स के लिए हम इस इंजन में बैच नहीं हो सकते। ये हो गया, मैक्सिमम फ्लाइंग नहीं कर सकते हाइट पे। अब प्रॉब्लम क्या आ गया कि हमें जो जेट इंजन होता है हम इसको बहुत ऊपर लेके जाके फ्लाइंग कर लेते हैं, है ना, वहाँ पे एफिशिएंट हमारा हो जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा एयर नहीं चाहिए। हम ज़्यादा एयर वाले एरिया में फ्लाई करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ड्रैग मिलेगा, ऊपर चले जाएंगे तो हमारा ड्रैग कम मिल जाएगा, तो हमें कम ही एयर चाहिए और फ्यूल हम बर्न ही कर रहे हैं और बर्न करके थ्रस्ट हम ले ही लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये तो हो जाएगा कि मैक्सिमम हाइट पे ये इंजन हमारा अच्छा चलेगा, बट जब मैक्सिमम हाइट पे इस इंजन को हम ले जा रहे थे तो हमें प्रॉब्लम देखने को मिल गया। क्या हुआ कि प्रोपेलर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि प्रोपेलर, इस इंजन का कॉन्सेप्ट है M×V, और यहाँ पे मैक्सिमम मास ऑफ एयर चाहिए। जैसे ही आपने हाइट इंक्रीज की, मास ऑफ एयर डिक्रीज हो गया, तो दिस इंजन विल नॉट इफेक्टिव फॉर द मैक्सिमम हाइट। तो 15,000 फीट 20,000 फीट तक ही अप्रॉक्स फ्लाई करेगा, उससे 15,000 20,000 अप्रॉक्स फीट, उससे ज़्यादा ये फ्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोपेलर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। और अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने बोला कि सर अगर ये हो रहा है तो हम आरपीएम बढ़ा लेते हैं ना, जैसे गैस टरबाइन में बढ़ाते हैं आरपीएम। तो जैसे ही हमने इसका आरपीएम बढ़ाया, प्रोपेलर का आरपीएम बढ़ाया, क्योंकि ये हो सकता है ना कि एयर क्वांटिटी अगर कम है, डेंसिटी कम है, तो आप आरपीएम बढ़ा लो प्रोपेलर की, बट क्योंकि आरपीएम से भी तो इंक्रीज हो जाएगा मास ऑफ एयर, बट आरपीएम बढ़ाया तो प्रोपेलर क्या हो गया, वाइब्रेट करने लगा, फ्लटर होने लगा, वाइब, और प्रोपेलर ब्रोक हो जाएगा। मीन समय समझ में आ गया कि सर इसका हमारा जो स्पीड है वो 450 एमपीएच के अकॉर्डिंग हो सकता है, या 650 जो केएम स्पीड का अप्रॉक्स सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जो भी यासा में डिफाइंड है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसका फॉरवर्ड स्पीड नहीं हो सकता है। तो दोनों प्रॉब्लम आ गई, आपने देखा कि सर जेट इंजन का ये पूरी तरह से क्या गया, रिप्लेस नहीं कर पाया, प्रॉब्लम यही हुआ। तो अब एयरलाइन का थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मिल गया कि हम छोटे सेक्टर में जेट इंजन तो नहीं फ्लाई करेंगे ना, इतना बड़ा इंजन तो नहीं फ्लाई करोगे ना छोटे सेक्टर में, स्मॉल सेक्टर्स में यू कैन यूज प्रोपेलर एयरक्राफ्ट। तो ये लोग स्मॉल स्मॉल सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए प्रोपेलर एयरक्राफ्ट यूज करने लगे और टर्बोजेट इंजन यूज करने लगे लॉन्ग सेक्टर्स के लिए। एडवांटेज मिला, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया सारे एयरलाइंस को, कॉमर्शियल्स को, ठीक है। अब ये भी हमारा इंजन उतना ज़्यादा इफिशिएंट नहीं था, तो एयरलाइन वर्क कर ही रही थी, मैन्युफैक्चर तो दिमाग लगा ही रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ नया एप्लीकेबल या डिजाइन स्टैंडर्ड हम रेडी करते हैं जो इन दोनों इंजन से परफेक्ट हो। तो इन्होंने बताया, अब मैं आपको बोलता हूँ कि थ्रस्ट स्पेसिफिक, थ्रस्ट का और अगर फ्यूल का ग्राफ बनाओ तो दो इंजन में, इन दो इंजन का ग्राफ क्या होता है, ये थ्रस्ट है और ये फ्यूल है, तो ग्राफ कैसे होगा, थ्रस्ट ज़्यादा है तो उल्टा हो गया, थ्रस्ट जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, यहाँ पे फ्यूल लिखो, यहाँ पे थ्रस्ट, तो ये ग्राफ है जेट का, जितना थ्रस्ट बढ़ाओगे उतना फ्यूल भी बढ़ेगा, ठीक है, जितना थ्रस्ट चाहिए उतना फ्यूल भी बढ़ेगा। टर्बो प्रोप का थोड़ा सा लो होता है, इसके नीचे आएगा ग्राफ ऐसे, क्योंकि इसका फ्यूल कंजप्शन कम है, तो इसके लिए थ्रस्ट बढ़ाओगे तो उतना ज़्यादा फ्यूल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ क्या है, बिलो है, या ऐसे ही स्ट्रेट हो जाता है, इसमें फ्यूल बढ़ाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। बट हमें जेट में तो चाहिए, जेट में थ्रस्ट फ्यूल से ही बढ़ेगा, फ्यूल कंजप्शन नहीं करोगे तो थ्रस्ट नहीं बढ़ सकता जेट में, और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जेट में थ्रस्ट बढ़ाने का ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब मैं वाटर इंजेक्शन एंड आफ्टर बर्नर नहीं बताऊंगा, जैसे टर्बो फैन बता दूंगा अब, क्योंकि अब जब टर्बो फैन बताऊंगा तो इसमें जब डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज एक्सप्लेन करूंगा कंपेयर करके, तो आफ्टर बर्नर एंड आपको वाटर इंजेक्शन भी बताऊंगा कि टर्बो फैन को चाहिए या नहीं चाहिए, है ना, और जेट को चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें तो बात ही नहीं होती है ये सब,
टर्बो प्रोप में तो नहीं चाहिए वैसे भी, क्योंकि हमें थ्रस्ट प्रोपेलर से चाहिए, कंप्रेसर पे ज़्यादा वर्क हम कर ही नहीं रहे, समझ रहे हो, तो वहाँ पे चाहिए ही नहीं, सिंपल है। तो हम लोग इन पे बात करेंगे। अभी टर्बोफन में क्या डिजाइन किया, इन्होंने बोला कि अब हम क्या करते हैं कि नहीं, हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन्होंने बोला कि हम एक ऐसा इंजन डिफाइन करते हैं जिनका 2 सेक्शन होगा। इन्होंने 2 सेक्शन डिफाइन किया, ठीक है, ये वाला थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। तो एक सेक्शन को इन्होंने डिफाइन किया कि ये बाईपास सेक्शन होगा और दूसरा सेक्शन हमारा कोर होगा, इन्होंने डिफाइन किया। और इन्होंने बोला क्योंकि फैन हमारा जो प्रोपेलर का ब्लेड है ये क्या हो जा रहा है, वाइब्रेट करने लग रहा है, फ्लटर करने लग रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि प्रोपेलर ब्लेड को छोटा करके कई सारे ब्लेड बना दें। बड़ा ब्लेड, बड़ा प्रोपेलर का ब्लेड ना करके थोड़ा सा छोटा करेंगे साइज, कंप्रेसर के रेस्पेक्ट में बड़ा ही रहेगा, है ना, बट कंपेयर टू प्रोपेलर का ब्लेड हम क्या करेंगे, कई सारे नंबर ऑफ ब्लेड बढ़ा दें और ब्लेड का साइज थोड़ा सा छोटा कर दें, तो भी तो हो सकता है ना, नंबर ऑफ ब्लेड बढ़ाओगे तो भी तो आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ एयर बढ़ जाएगी। तो इन्होंने यही जो प्रॉब्लम टर्बो प्रोप इंजन में थी उस प्रॉब्लम को यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने जो बनाया इसको कहा दिया गया फैन, उसको कहा जाता है प्रोपेलर। तो ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो बस हम प्रोपेलर इंजन से इस इंजन को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अब इसमें हमने क्या किया कि जो फैन से एयर हमने लाया उसको हमने बाईपास कर दिया, बट एक बंद कमरे में रखा, एक चैम्बर रखा। बट वही जो प्रोपेलर इंजन में आप देख रहे हो तो वहां पे एक चैम्बर नहीं है, चैम्बर है नहीं है, आप देख रहे हो वहां पे कोई चैम्बर नहीं है, ठीक है, वहां पे ओपन टू इन्वायरमेंट है। बट यहाँ पे हमने क्या किया, चैम्बर रखा कि एक चैम्बर में हम एयर को बाईपास करेंगे और कुछ एयर हमारा कोर में जाएगा, जिसके वजह से हमारे फैन को थ्रस्ट मिलेगा, मींस फैन को क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम सेम कर रहे हैं कि फैन से हमारा क्या चलेगा, हमारा टरबाइन, तो एयर आया, कंप्रेसर हुआ, कंप्रेसर से हमारा स्ट्राइक हुआ टरबाइन पे, टरबाइन से हमारा कंप्रेसर चलेगा, कंप्रेसर से क्योंकि सेम हमारे शाफ्ट से कनेक्टेड है फैन, तो अब फैन चलेगा और फैन चलेगा क्योंकि ये भी देखो बड़ा फैन है, लार्ज फैन है, तो मास ऑफ एयर यहाँ पे बहुत ज्यादा है इस एयर के पास भी, इस इंजन के पास भी। तो मास ऑफ एयर जब बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा एयर ये बाईपास करता है और बाईपास करने की वजह से हमें थ्रस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको कंपेयर करके यहाँ पे एक नोजल से क्या कर रहे हैं, अब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम ना, एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कन्वर्जेंट नोजल बना दिया और एग्जॉस्ट कर दिया, और बाकी एक कोर एग्जॉस्ट है। तो 2 एग्जॉस्ट यहाँ पे हमें इस इंजन से मिला, एक फैन का एग्जॉस्ट और एक कोर का एग्जॉस्ट, 2 एग्जॉस्ट मिला। तो मैक्सिमम थ्रस्ट में किससे मिला, यहाँ पे भी हमने मैक्सिमम थ्रस्ट डिमांड किया फैन से। तो कितना थ्रस्ट, 80% ऑफ द थ्रस्ट हमने डिमांड किया फैन से। और क्योंकि ये या कौन से भी, क्योंकि हमने यहाँ पे नोजल बनाया तो कौन से भी हमें थ्रस्ट मिलेगा, तो 20% ऑफ द थ्रस्ट अभी हमें एग्जॉस्ट से मिलता है, सिंपल है। तो आप देखोगे कि सर ये जो इंजन है ये प्रोपेलर इंजन की तरह ही तो है। प्रोपेलर इंजन पे ये तो हमने क्या किया है, बस एक चैम्बर लगा दिया है और प्रोपेलर ब्लेड को छोटा कर दिया है। हाँ यही है, प्रोपेलर इंजन से ही इसका एवोल्यूशन हुआ, इसीलिए मैं आपको प्रोपेलर बताया कि जेट इंजन बना, फिर प्रोपेलर बना, उसके बाद फैन इंजन बना। प्रोपेलर इंजन से ही इसका इवोल्यूशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये प्रोपेलर इंजन का ही एक इंटीग्रेटेड डिजाइन है। तो किसका डिजाइन बोलते हैं कि प्रोपेलर इंजन और जेट इंजन का एक हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड इंजन है प्रोपेलर और जेट का। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट है ना कि देखो, थ्रस्ट एग्जॉस्ट से भी मिल जा रहा है और फैन से भी मिल जाएगा। तो फैन से थ्रस्ट मिल रहा है जो प्रिंसिपल वर्क कर रहा है टर्बो प्रोप पे, एग्जॉस्ट से जो थ्रस्ट मिल रहा है वो प्रिंसिपल वर्क कर रहा है जेट पे, तो इसलिए हाइब्रिड इंजन है, ठीक है। इन दोनों का मिक्स इंजन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 14 में पूछता था, ठीक है, ये सब ये मिक्स इंजन है या नहीं है, तो है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इंजन डिफाइंड हुआ। अभी मैं शाफ्ट के बारे में कोई बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कई सारे सॉफ्ट होते हैं, ड्यूल शाफ्ट होंगे, 3 शाफ्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्पूल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, डबल स्पूल, ट्रिपल स्पूल, यहाँ पे 2 स्पूल डिफाइन किया है, बट हम बात नहीं कर रहे, हम बेसिक बेसिक बताए। अब इस इंजन से क्या हुआ कि देखो, ये इंजन की जो फ्यूल एफिशिएंसी की ग्राफ है वो आप समझ लो कि फ्यूल एफिशिएंसी ये है और थ्रस्ट का ग्राफ ये है। तो ये हमारा रहा जेट का, ये हमारा रहा टर्बो प्रोप का, और ये हमारा रहा, सॉरी ये हमारा रहा फैन का, ये हमारा टर्बो प्रोप का। अब आप सोचो कि सर ये ग्राफ किस में है, तो ये एरविन ट्रेगर में है, तो वहां पे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी उसको ओपन करूंगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ बस। और ये हमारा जेट का है, तो ये ग्राफ है इनका, फ्यूल और थ्रस्ट का रेज आपका ग्राफ है। क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा फ्यूल कंजप्शन किसमें है, जेट में, उसके बाद किस पे है, फैन में, उसके बाद किसके पास है,
टर्बोप्रोप मीन्स मैक्सिमम जेट उससे कम फैन में और बहुत कम लिस्ट हो जाएगा टर्बोप्रोप में। मीन्स हमारा फैन इंजन का हर चीज मिड में होता है, इनका वेट रेशियो भी इन दोनों के मिड में है, कॉम्प्लेक्सिटी भी इन दोनों के मिड में है, ठीक है, और हमारा फ्यूल कंजम्पशन भी इन दोनों के मिड में है, और थ्रस्ट थ्रस्ट का जो रेशियो भी बोलते हो थ्रस्ट भी इन दोनों के मिड में ही है। सिंपल है, इसलिए इन दोनों के मिड मिड में ही लाई करेगा ये, क्योंकि इन दोनों का ही कॉम्प्लेक्स इंजन है, कंबाइंड इंजन है, हाइब्रिड इंजन है ये। सिंपल होगा। अब एयरलाइनर्स को कुछ एडवांटेज मिल गया। एडवांटेज ओवर फैन इंजन का ओवर जेट इंजन पे एडवांटेज तो मिल ही गया कि जेट इंजन से कम फ्यूल ले रहा है। ऊपर से टर्बो प्रोप के रिस्पेक्ट में क्या एडवांटेज मिला? एडवांटेज ये मिला कि टर्बो प्रोप ज्यादा हाई नहीं जा सकता था, अगर ज्यादा हाई जाएगा तो हमारा प्रोपेलर एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी और हम टर्बो प्रोप ले नहीं जा सकते और लॉन्ग सेक्टर फ्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम फैन इंजन से जेट इंजन को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। इंडिया में जेट इंजन है क्या? ढूंढते रह जाओ, किसी भी एयरलाइन में ढूंढो, किसी के पास नहीं है। इंडिगो के पास एक भी नहीं है, सबसे बड़ी एयरलाइन के पास तो है नहीं, तो क्या ही ढूंढोगे आप, भूल जाओ, फिर ढूंढो ही मत। सबके पास फैन इंजन, तो वर्ल्ड वाइडली यूज किया जाने लगा फैन इंजन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न टरबाइन इंजन मोस्ट वाइडली यूज्ड, तो आपका आंसर होता है कि फैन टरबाइन इंजन या टर्बो फैन इंजन, इसलिए इसको बोलते हैं। और हमने टर्बो प्रोपेलर हटा करके फैन बनाया, अदरवाइज उसको भी टर्बो प्रोप कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रोपेलर है, 2 ही ब्लेड है, 4 ब्लेड हो सकते हैं, 6 ब्लेड हो सकते हैं, बट इसमें नंबर ऑफ ब्लेड हमने बढ़ा दिया तो उसका नाम फैन रख दिया, तो इसलिए इसका नाम हो गया टर्बो फैन, अदरवाइज इसको भी हम टर्बो प्रोप ही कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब आज बात आती है कि सर ये इंजन दो तरह से डिफाइंड हो सकता है। हमने बाईपास बहुत ज्यादा रखा, देखो यहाँ पे। अब आप देखोगे कि सर आपने कोर में एयर बहुत ही कम भेजा और फैन से बाईपास आपने मैक्सिमम एयर किया, यही हम लोग पढ़ते हैं ना जीटी में, कि हमने मैक्सिमम एयर बाईपास किया, ठीक है, और मिनिमम एयर कोर में भेजा। इससे एडवांटेज क्या हुआ? एडवांटेज ये हुआ कि हम फैन से ज्यादा थ्रस्ट बनाएंगे, कोर से कम थ्रस्ट बनाएंगे। सिंपल है, 80 और 20 का रेशियो मेंटेन करेंगे। तो इसका मीनिंग ये होता है कि सर फैन मतलब फैन बाईपास ज्यादा है, कोर बाईपास कम है, मतलब कोर रेशियो कम है, तो फैन और कोर का रेशियो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? हमारा बाईपास रेशियो हो जाएगा। तो यही टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इस इंजन का बाईपास रेशियो कितना है, तो बाईपास रेशियो पढ़ना है तो ये पढ़ लो, फैन अपन कोर, उनका रेशियो निकाल लो कि फैन कितना एयर भेज रहा है अपन कोर में कितना एयर रिसीव हो रहा है, उसका रेशियो निकाल लो आप। तो ये फैन अपन कोर का रेशियो नॉन एज द बाईपास रेशियो। तो जनरली 5.1 है। अब मैं बता देता हूँ, जो आपके पास पीडब्ल्यू है इंडिगो में, उसका 12.2 12.3 है, जो आपका लीप इंजन है उसका 11 पॉइंट के अप्रॉक्स है, और 12 है, 12.1 है पीडब्ल्यू के पास। इसीलिए पीडब्ल्यू जो इंडिगो यूज कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा हाई बाईपास इंजन, बहुत ज्यादा हाई है बाईपास उसका, लीप का कम है कंपेयर टू पीडब्ल्यू, इसलिए पीडब्ल्यू के पास थ्रस्ट बहुत ज्यादा है, जितना बाईपास करोगे उतना ज्यादा थ्रस्ट है। अब देखो, अब आप बोलते हो कि सर हम थ्रस्ट कैसे बढ़ाएंगे? मैक्सिमम बाईपास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एयर बाईपास करो, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोपेलर में थ्रस्ट मैक्सिमम क्यों मिल रहा था? यहाँ पे 90% ऑफ द थ्रस्ट प्रोपेलर से मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एयर हम यहाँ पे बाईपास कर रहे हैं, कोर में हम एयर ही नहीं भेज रहे हैं। तो आप बोलोगे कि सर यही काम हम इसमें करते हैं ना, फिर फैन इंजन में। अब करके देखो, देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमने क्या किया, कोर को बहुत ज्यादा छोटा बना दिया। अब कोर में एयर हम कम भेजेंगे, बट यहाँ पे एक तो फैन है, फैन को आरपीएम चाहिए, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। आपने बोला चलो ठीक है सर, वो भी हम झेल सकते हैं, हमने एयर बाईपास कर दिया। बट अब हमारा कोर इतना ज्यादा कन्फाइंड हो जा रहा है कि हमारा जो कंप्रेसर ब्लेड है, हमारा जो टरबाइन ब्लेड है, वो क्या हो जा रहा है? इन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर कैसे होता है? आपने पढ़ा है ना, हीट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्लेड बेंड हो जाएंगे, कूल नहीं हो पाता है, इंजन का कूलिंग, इंजन का जो स्टार्टिंग टाइम है बहुत ज्यादा हो जाएगा, इंजन का स्टार्टिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मेरे को आप बताइए, क्या पीडब्ल्यू का स्टार्टिंग टाइम लीप इंजन से ज्यादा होता है? क्यों है? सबसे बड़ा रीजन यही है, इसके अलावा और कोई रीजन होता ही नहीं है। तो आप समझ गए कि सर पीडब्ल्यू का स्टार्टिंग टाइम इंडिगो में ज्यादा क्यों है। इंडिगो के पास जो पीडब्ल्यू है कंपेयर टू लीप इंजन 1 अल्फा 26 जो इंडिगो यूज कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि उसका कोर बहुत कन्फाइंड है। जब कोर बहुत कन्फाइंड है तो उसका
जो आइडल जो कर रहे हो, जो मोटरिंग कर रहे हो आप फ्री एयर का, वो ज्यादा देर तक करोगे, तभी आपका कोर क्या होगा, ठंडा होगा। अदरवाइज कोर ठंडा, आपका जो कोर में एयर, जो हॉट एयर है, मुझे एग्जॉस्ट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, हॉट स्टार्ट हो जाएगा। हॉट स्टार्टअप समझते हो ना, पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा फ्यूल और फ्लेम आउट हो जाएगा इंजन। मेजर रीजन है। दूसरा, क्यों आपको रोटेट करना है कि जो हॉट एयर है उसे बाहर निकालो, वरना क्या हो जाएगा, ब्लेड इन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर वाले ब्लेड ज्यादा, क्योंकि हॉट एयर क्या होता है, हॉट एयर का जो वेट होता है बहुत कम होता है, तो वो कहाँ जाएगा, हॉट एयर कहाँ पे रहेंगे, सब ऊपर रहेंगे ऐसे, और नीचे वाले तो सारे ब्लेड कूल हो गए, टरबाइन ब्लेड्स, कंप्रेसर ब्लेड, ये सब कूल है, ऊपर वाले क्या है, हॉट है। तो अगर आपने इसको रोटेट करके, मतलब केवल मोटर करके एयर को एग्जॉस्ट नहीं किया, तो ये वाले ब्लेड इन्वर्ट हो जाएंगे, ये वाले ब्लेड क्या हो जाएंगे, उसी एंगल में रहेंगे, तो ये डिफॉर्म हो गए, तो एफिशिएंसी वैसे ही खत्म हो गई, इंजन आपका खत्म हो गया। आपको स्टार्टिंग टाइम ज्यादा लगेगी, जितना कन्फाइंड करोगे इंजन को स्टार्टिंग टाइम ज्यादा लगेगी, मीन्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंजन हो जाता है, इसलिए हम बहुत ही ज्यादा कन्फाइंड इंजन और बहुत ही ज्यादा हाई बाईपास वाले इंजन नहीं बना पाते हैं कंपेयर टू पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू ही आज के टाइम में सबसे एडवांस इंजन है और सबसे बड़ा इंजन है, जिसके पास अल्ट्रा हाई बाईपास है, उससे ज्यादा किसी के पास हाई पास नहीं मिलेगा, ये जो इंडिगो यूज करता है। पीडब्ल्यू ही बनाता है कॉम्प्लेक्स इंजन, इसलिए पीडब्ल्यू के पास प्रॉब्लम है। अब दूसरा प्रॉब्लम बता देता हूँ, आप देखते हो कि सर पीडब्ल्यू में एक ड्यूल कूलिंग आता है, अगर आप इंडिगो में वर्क कर रहे हो तो आपने सुना होगा ड्यूल कूलिंग। क्यों करते हैं, ड्यूल कूलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ड्यूल कूलिंग का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम अगर पहला इंजन स्टार्ट कर रहे हैं तो सेम टाइम पे ही हम दूसरे इंजन को भी कूल कर रहे हैं, ताकि दूसरे इंजन का स्टार्टिंग टाइम कम हो सके, उसको जल्दी हम स्टार्ट कर लेंगे, इसीलिए ड्यूल कूलिंग का कॉन्सेप्ट लगाया गया है पीडब्ल्यू में। और इस दैट्स वाई पीडब्ल्यू का क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम ज़्यादा है। तो आपको समझ में आया कि सर बहुत ज़्यादा हाई बाईपास वाले इंजन हम नहीं बना सकते हैं, लीप ही हमारा सबसे अच्छा इंजन है आज के समय में, क्योंकि हम पीडब्ल्यू का यूज करेंगे तो स्टार्टिंग टाइम ज़्यादा होगा, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगा, फिर हमारा क्या होगा, ओटीपी में डिस्टर्बेंस आएगी, तो ये सब कहानियाँ देखने को मिलेगा। और पीडब्ल्यू में क्या होगा, हाई वाइब्रेशन के इशू देखने को मिलेगा, फिर अगर बहुत ज़्यादा कन्फाइंड कर दिए इंजन तो डिफॉर्मेशन होगा ब्लेड, बार बार हमें ओवरऑल में ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, है ना, बहुत छोटा हो जाएगा कोर, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये सारे रीजंस हमें देखने को मिले, और भी सारे रीजंस हमें बताऊंगा उतना धीरे धीरे करके कि लीप में क्या प्रॉब्लम आ रही है और पीडब्ल्यू में और भी क्या प्रॉब्लम्स है जो मैंने पढ़ा है, वो सब बताऊंगा। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हो गई, फैन इंजन, जेट इंजन, प्रोप इंजन। अब समझ में आता है कि सर इस इंजन को दो टाइप्स में बना सकते हैं, ये सारा बुक में पढ़ा है, ये मत समझना कि सर आप बस ऐसे कॉपीराइट आप ऐसे पढ़ा रहे हो तो ये बुक में नहीं दिए, सारी चीजें बुक में, बट ये इवोल्यूशन बुक में नहीं है, तो इवोल्यूशन मैंने पढ़ाया है, इंजन को कंपेयर किया, तो इंजन का जो कंपेरिजन है वो सारा बुक में, इवोल्यूशन नहीं है, छोटी छोटी इसमें थोड़ा थोड़ा दिया है, बट इस तरह से डिफाइन नहीं है ना, वो तो अपने कॉन्सेप्ट में डिफाइन करेंगे ना। अब दो टाइप के हम इंजन ये डिफाइंड होता है, लो बाईपास इंजन, हाई बाईपास इंजन, ठीक है। तो हमारी जो एयरलाइंस यूज कर रही है वो हाई बाईपास इंजन यूज कर रही है, ठीक है। तो हाई बाईपास इंजन आप समझ गए कि क्या होगा, बाईपास बहुत ज्यादा है, लो बाईपास में बाईपास बहुत कम है, अब समझ लो यहाँ पे हमें आफ्टर बर्नर और वाटर इंजेक्शन क्यों चाहिए। आप समझते हो कि सर वाटर इंजेक्शन एंड आफ्टर बर्नर क्या होता है, थ्रस्ट ऑगमेंटेशन होता है, मींस अगर वाटर इंजेक्शन हम कर रहे हैं तो हमारा इंजन का थ्रस्ट बढ़ जाएगा। अब ह्यूमिड डे आ जाए, अब मान के चलो ह्यूमिड डे आ गया, अभी जैसे समर डे है ना, समर डे में आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा बेसिक बेसिक, आप लोग को पता होगा कि हमारे गैस टरबाइन का इंजन का परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिंपल है, क्यों कम हो जाता है, आप सिंपली कहते हो कि सर ये तो बहुत बेसिक सा है, हमारा जो डेंसिटी है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमको जो एग्जैक्ट क्वांटिटी या फेयर था बर्निंग के लिए मिल नहीं पाता है, तो हमारा इंजन का परफॉर्मेंस कम हो जाता है, सिंपल बता देते हो। और कोल्ड एयर में हमारा इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जेट इंजन का। प्रॉब्लम हुआ। तो अभी आज के समय में अब देखो टेम्परेचर कितना है, 52 53, अगर इतना टेम्परेचर है, अभी तो 40 45 46 47 चल रहा है, और कहता है कि फील लाइक 48, ऐसे गूगल बताता रहता है, कहता है 42 टेम्परेचर है बट फील कर रहे हो 46, तो डायरेक्ट 46 ही बताओ ना कि हम 46 ही फील कर रहे हैं, भाई जो फील कर रहे हैं वही तो बताना चाहिए, बट कुछ भी लिखता रहता है गूगल पे, है ना, तो फील लाइक 46। तो अभी टेम्परेचर इतना ज्यादा है, तो सिंपल है, हमारा इंजन का परफॉर्मेंस कम तो है। अब जेट इंजन में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इंजन का परफॉर्मेंस कम हो रहा था। अब इसका ग्राफ बना देता हूं, आप समझ लो, देखो जैसे ह्यूमिड, अब ये भी ग्राफ आपका किस में दिया है, एर्बन ट्रिगर में दिया है, ये मैं समझना कि हम कुछ भी हवाबाजी कर रहे होंगे।
है ना। ऐसा नहीं है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है तब ये बता रहा हूँ। तो अभी देखो ह्यूमिड डे में और थ्रस्ट का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी और ये थ्रस्ट का ग्राफ है। उसमें ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है बट आपको इजी समझाने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा थ्रस्ट उतना ही कम हो जाता है। तो आपका क्या होता है, जो जेट इंजन है, ये जेट इंजन का ग्राफ है, ऐसे गिरता है। ये जेट इंजन की बता रहा हूँ, फैन इंजन नहीं है ये। प्रोपेलर इंजन एकदम मजे में, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका उसका थ्रस्ट ऐसे है, ह्यूमिडिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे मतलब बहुत कम इफेक्ट है यहाँ पे आएगा। और जो आपका प्रोपेलर, आपका फैन इंजन है, वो यहाँ पे आता है। आपको समझ में आता है कि सर ह्यूमिडिटी एंड थ्रस्ट का जब आप ग्राफ बनाते हो तो ह्यूमिडिटी का मैक्सिमम इफेक्ट किस पे आता है, जेट इंजन पे। उसके बाद किस पे आएगा इफेक्ट, लेस इफेक्ट आएगा फैन इंजन पे। और सबसे लेस इफेक्ट आएगा किस पे, टर्बोप्रोप। टर्बोप्रोप को क्यों लेस इफेक्ट आता है, देखो ह्यूमिडिटी कम हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई, एयर कम मिल रहा है, तो बर्निंग से उनको कुछ लेना ही देना नहीं है। सोचो ना, फैन आपको टर्बोप्रोप इंजन में ज्यादा बर्न करना है, नहीं बर्न करना है, तो बर्निंग एफिशिएंसी कहाँ रिड्यूस हो रही है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसको तो थोड़ा सा एयर मिल जा रहा है, वो बर्न कर ले रहा है, प्रोपेलर घुमा लेगा, सिंपल है, थ्रस्ट मिल जा रही है। बट जेट इंजन बेस्ड ऑन द बर्निंग प्रिंसिपल, बर्निंग एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, अगर बर्निंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो दे विल नॉट गेट अ थ्रस्ट। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इज अफेक्टिंग द बर्निंग एफिशिएंसी ऑफ द जेट जेट इंजन। ठीक है, क्योंकि हमें एयर नहीं मिल रहा है उतना क्वांटिटी में, बर्निंग के लिए प्रॉब्लम हो रही है। फैन इंजन को भी देखो इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब सोचोगे सर कैसे, क्योंकि उसका भी तो फैन है, लेसी एयर बर्न करना है कोर में, इसलिए तो हाई बाईपास बनाया। फैन ही बस घुमाना है, फैन घूम रहा है, उसको थ्रस्ट मिल रहा है, तो उस ये भी हमारा लेस इफेक्टिव हो गया। इस पे ज्यादा इम्पैक्ट, सॉरी मतलब कम इम्पैक्ट है, बट ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट किस पे हो गया, जेट पे बहुत ज्यादा हो गया। एक मिनट है, किसी ने कमेंट किया, दिनेश, थ्रस्ट कंबस्शन चैम्बर में नहीं, एग्जॉस्ट पे मिलेगा जेट इंजन के लिए। और जब वही फैन इंजन की आप बात करते हो तो फैन पे मिलेगा 80% का थ्रस्ट और 20% आपको एग्जॉस्ट पे मिलेगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप पूछते रहना, मैं आपको बताता रहूंगा, अब फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी मैंने आपको ह्यूमिडिटी और थ्रस्ट में एक ग्राफ डिफाइन किया और समझाया कि जेट इंजन में कितना ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रहा है। और हम ये सब कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, जब आप ये स्किप कर देते हो ग्राफ ना, लाइक अगर आप यू आर अ फ्रेशर एंड यू आर रीडिंग द एरविन ट्रेगर, यू विल नेवर फॉलो द मैप्स, यू विल नेवर गो थ्रू द दैट दिस चार्ट व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, कभी नहीं आप फॉलो करोगे। ठीक है, आप पढ़ते भी नहीं हो, बस उसके टॉपिक टीएफएससी का थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन आप पढ़ के निकल जाते हो, ग्राफ में जाते नहीं हो, इसलिए आप इंजन में बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो। बट मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूँ कि हमें आफ्टर बर्नर क्यों चाहिए। अब देखो बस मैं ये कहानी बता रहा हूँ ना, आपको लगेगा सर ये कहानी आप ही बता रहे हो, मैं ये जो कहानी बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल क्लियर द कॉन्सेप्ट अबाउट द आफ्टर बर्नर एंड वाटर इंजेक्शन किसको चाहिए। अच्छा बताओ, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि जेट इंजन को बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी का इफेक्ट है, क्यों, क्योंकि बर्निंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है और ये बर्निंग प्रिंसिपल पे ही वर्क कर रहा है, बर्न हम ज्यादा करेंगे तो हमें थ्रस्ट मिलेगा। देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि सर हमें आफ्टर बर्नर देन जेट इंजन को चाहिए, क्योंकि जेट इंजन को ही प्रॉब्लम हो रही है, वाटर इंजेक्शन जेट इंजन को चाहिए। अब यू आर अ फ्रेशर, यू डोंट नो अबाउट द आफ्टर बर्नर एंड यू डोंट नो अबाउट द वाटर इंजेक्शन, तो जस्ट वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द वाटर इंजेक्शन एंड व्हाट इज द आफ्टर बर्नर, और ये किस तरह से काम करता है अब आप यहाँ पे समझो। हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा जो डेंसिटी एयर है वो डिक्रीज हो गया है। तो पहले आप समझो वाटर इंजेक्शन, वाटर इंजेक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं इंजन में, जेट इंजन में क्या करते हैं, यहाँ पे कई सारे नोजल लगा देंगे। ठीक है, कहाँ पे लगाएंगे, कंप्रेसर सेक्शन में, और ये कहाँ पे डिफाइंड है, रोल्स रॉयस में। इसलिए मैं बोल रहा था कि वाटर इंजेक्शन या जिसे हम बोलते हैं थ्रस्ट ऑगमेंटेशन सिस्टम, जो यासा में डिफाइंड है थ्रस्ट ऑगमेंटेशन, जिसके दो पार्ट होते हैं, वाटर इंजेक्शन एंड, दो टाइप के थ्रस्ट ऑगमेंटेशन सिस्टम है, वाटर इंजेक्शन एंड आफ्टर बर्नर, और यही दो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं जेट इंजन में, और बहुत अच्छे से डिफाइंड है रोल्स रॉयस में। ठीक है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे वाटर इंजेक्शन के लिए, क्या लगाया, नोजल लगा दिया। नोजल से हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टैंक होगा, उससे एयर वाटर लेके आएंगे और यहाँ पे कंप्रेसर सेक्शन में भेजेंगे, स्प्रे करेंगे। सोचो क्या होगा,
एयर हमारा क्या है, हॉट है। आप कह रहे हो कि सर आपने एयर वाटर इंजेक्ट कर दिया, वाटर इंजेक्ट, हॉट एयर में वाटर इंजेक्ट करने से क्या होगा, कूल वाटर डाल दिया आपने, वाटर क्या करेगा, एयर को कूल करेगा, टेम्परेचर क्या होगी, डाउन, कूल होगा, टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर डाउन क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज। सिंपल, समझ गया, बस यही कॉन्सेप्ट था वाटर इंजेक्शन। क्या डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज है कंप्रेशर ब्लेड स्टिकी हो जाता है, कंप्रेसर वॉश ज़्यादा रिक्वायर्ड है जेट इंजन में कंपेयर टू कम फैन इंजन, क्योंकि फैन इंजन में तो हम वाटर इंजेक्शन करते नहीं है। भाई इनको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब वाटर इंजेक्शन करोगे तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल्स है जो ब्लेड पे जाके इरोजन करेंगे, कंप्रेसर ब्लेड को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, डेटोरिएट करेंगे, इरोजन बनाएंगे, खराब करेंगे ब्लेड को। तो अब इस इंजन को मेंटेनेंस बहुत ज्यादा चाहिए, किसको, इंजन को नहीं, कंप्रेसर सेक्शन को, क्योंकि वाटर इंजेक्शन हम कहाँ पे करते हैं, कंप्रेसर सेक्शन में। तो ये सारी डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, बट बेसिक बेसिक अभी समझ लो कि वाटर इंजेक्शन हमने कहाँ पे किया। तो डिसएडवांटेज वगैरह जितने भी टर्मिनोलॉजी है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सब कनेक्ट कर दूंगा एक ही बार में कि कैसे कैसे होता है और क्या क्या प्रॉब्लम हो गया इस इंजन के साथ। अब देख रहे हो कितना प्रॉब्लम है, थ्रस्ट का प्रॉब्लम था, हमने वाटर इंजेक्शन किया, उससे भी प्रॉब्लम हमको मिल गई कि अब तो ये मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा मांगेगा, कंप्रेसर सेक्शन को वाटर, हमें वाटर वॉश करना पड़ेगा। आपने वाटर वॉश सुना होगा, बेसिक बेसिक वाटर वॉश में हम क्या करते हैं, कंप्रेसर को वॉश कर रहे हैं, या जनरली हम कंप्रेसर वॉश भी कर रहे हैं कहते हैं। तो कंप्रेसर वॉश की रिक्वायरमेंट अब ज्यादा हो गई इस इंजन के लिए। अब कितना भी कंप्रेसर वॉश कर लो, वाटर इंजेक्शन तो कर ही रहे हो ना, तो ब्लेड हमारा इरोड होगा ना, विद रिस्पेक्ट टू द फैन इंजन ये ज्यादा इरोड होगा, ज्यादा खराब होगा ब्लेड, तो मेंटेनेंस ज्यादा मांगेगा, ब्लेड जल्दी से जल्दी इसकी एक्सपायरी आएगी, तो प्रॉब्लम ये हुई। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लो, ये बेसिक वाटर इंजेक्शन हो गया। अब इसमें और प्रॉब्लम क्या होगा, वेट बढ़ गया इंजन का और ज्यादा, नॉजल्स लगा दिया आपने, एक टैंक लगाया। अब आप सोचोगे सर वाटर टैंक इंजन से लगाते, देखो इंजन में नहीं लगाते वाटर टैंक, वाटर टैंक हमारा सेपरेट रहता है, बट हमारा वेट तो बढ़ रहा है ना, नॉजल लगा रहे हो तो वेट बढ़ेगा ना, कॉम्प्लेक्स हो रहा है इंजन, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई इंजन की, प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है इस इंजन में, ठीक है। दैट्स वाई मॉडर्न एयरलाइनर पूरा रिप्लेस कर दिया, मॉडर्न एयरलाइनर ने क्या बोलो, मैन्युफैक्चर बना ही नहीं रहे इस इंजन को, फैन इंजन बना रहे हैं, क्योंकि इसमें एडवांटेज नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा लॉस है, ठीक है, एडवांटेज से ज्यादा इकोनॉमी लॉस है इस इंजन में। अब वाटर इंजेक्शन मैंने बहुत इजी में आपको बताया है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको बताता रहूंगा। एक बेसिक डिसएडवांटेज बता दिया कि कंप्रेसर बहुत ज्यादा डिटोरिएट होता है इसके वजह से, इसलिए वाटर इंजेक्शन हम नहीं यूज करते विद रिस्पेक्ट, हम आफ्टर बर्नर ज्यादा यूज करेंगे। अब आफ्टर बर्नर क्या होगा ये समझो, देखो आफ्टर होता है और बर्नर, नाम से समझ में आता है कि सर आफ्टर बर्नर मीन्स जहां पे बर्निंग हो रही है उसके बाद हम कुछ करने वाले हैं, सिंपल है। आफ्टर बर्नर मीन्स जो कंबशन चैम्बर है इसी में बर्निंग हो रही है, मीन्स इसके बाद ही हम कुछ करने वाले हैं, वो आफ्टर बर्नर है। तो हमने क्या किया इस इंजन में, अब इंस्टेंट हमें थ्रस्ट बूस्ट करना है तो हम वाटर इंजेक्शन करते हैं। अब ये मत समझना आप कि हम कंटिन्यूअस वाटर इंजेक्शन कर रहे हैं, 2 घंटे की फ्लाइंग है तो 2 घंटे वाटर इंजेक्शन ही कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, कुछ लिमिटेड टाइम तक करेंगे ना, कितना पानी लेके जाओगे, ठीक है। तो वाटर इंजेक्शन बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं मिला, तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया आफ्टर बर्नर। तो पहले वाटर इंजेक्शन आया था, वाटर इंजेक्शन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, कंप्रेशर, वेट, वाटर लेके कितना फ्लाई करोगे, देन ये सारे इश्यूज आए, फिर इसको हटाया गया, फिर इन्होंने सोचा कुछ और करते हैं, तो इन्होंने अब आफ्टर बर्नर लगाया। अब आफ्टर बर्नर हम केवल इंस्टेंट थ्रस्ट के लिए यूज करेंगे, ये भी हमेशा नहीं यूज करते, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के लिए यूज करेंगे, इंस्टेंट थ्रस्ट मिलेगा। और कितना थ्रस्ट होता है, डबल, डायरेक्ट डबल थ्रस्ट होगा। मान लो अल्फा थ्रस्ट मिल रहा है ना, और जैसे ही आपने आफ्टर बर्नर यूज किया डायरेक्ट डबल हो जाएगा थ्रस्ट। वाटर इंजेक्शन में आफ्टर बर्नर के रेस्पेक्ट में कम थ्रस्ट इंक्रीज होता है, बट इसमें ज्यादा क्यों होगा अभी समझ, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आफ्टर बर्नर हम ये जो ऑगमेंटेशन सिस्टम है हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एग्जॉस्ट है यहाँ पे हमने क्या किया, अगेन फ्यूल नोजल लगा दिया। देख रहे हो क्या कहानी हम लोग कर रहे हैं, इंजन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए इतनी कहानी बना रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है हमारे इंजन में, आप आपने बोला सर ह्यूमिडिटी, समर डेज, यही तो प्रॉब्लम है हमारे इंजन का, हमारा इंजन एफिशिएंट नहीं है, थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है, यही प्रॉब्लम है। इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इतनी कहानी हम कर रहे हैं। देन हमने यूज किया फ्यूल नोजल्स एग्जॉस्ट में,
तो आपने देखा ना, आफ्टर मतलब बर्नर, जहां पे हमारा बर्नर्स लगे हुए थे उनको छोड़ा, कंप्रेसर के पास, टरबाइन के पास लगाएंगे नहीं, तो हमने कहाँ लगाया, एग्जॉस्ट नोजल में। और ये कहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट, रोल्स रॉयस में, यासा में नहीं डिफाइंड है। मैं यही नहीं समझ पाता था कि आफ्टर बर्नर हम कहाँ पे लगाएंगे, टरबाइन पे लगाएंगे, टरबाइन पे तो लगा नहीं सकते, वहां पे तो जगह ही नहीं है। तो कंबशन में लगाएंगे तो फिर प्रॉफिट क्या हुआ, फिर तो बात सेम ही हो गई, हम कहाँ पे लगाएंगे आफ्टर बर्नर। देन हमको रोल्स रॉयस में समझ में आया कि हाँ, आफ्टर बर्नर में जो हम फ्यूल नोजल यूज कर रहे हैं, या जो बर्नर हम लगा रहे हैं, बर्नर मीन्स फ्यूल नोजल है हमारा, जो हम बर्नर नोजल्स लगा रहे हैं वो हम किधर लगाएंगे, एग्जॉस्ट में लगाएंगे, जस्ट आफ्टर द टरबाइन। वेट ऑफ द इंजन बढ़ा बढ़ा ना। अब आपको समझ में आया कि सर फ्यूल नोजल लगा रहे हैं, इससे हम करने क्या वाले हैं, देखो क्या करने वाले हैं। हमारा थ्रस्ट मिल रहा है यहाँ पे, हमारा एयर यहाँ पे जा रहा है, कितना आराम से एयर बाईपास हो रहा था, हमने कन्वर्जन डक्ट लगाया हुआ था, आराम से एयर हमें फोर्स दे रहा था, वेलोसिटी मैक्सिमम मिल रही थी और हमें मोमेंटम मिल रहा था। लेकिन हमने जो हमारा जो एयर हमारा एग्जॉस्ट होता है वो हॉट होता है, हमने इसमें क्या दे दिया, फ्यूल। समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो, आग में आग डालने का काम, आग में आग डालने का काम मीन्स दे हैव ऑलरेडी एनर्जी, हॉट एनर्जी, एयर के पास ऑलरेडी हॉट एनर्जी है और इसमें आपने फिर से फ्यूल डाल दिया, इसमें मिक्स कर दिया फ्यूल को। और यहाँ पे हमें इग्नाइटर नहीं लगाना है, ये समझ लेना। हॉट है एयर, इतना हॉट है कि जैसे फ्यूल आएगा तुरंत आग लगेगी। तो अब क्या हुआ कि जो एयर हुआ, एक तो वो ऑलरेडी पागल है, एयर बहुत ज्यादा वायलेंट एयर है, ठीक है, उसमें इतना ज्यादा एनर्जी है, मोमेंटम है, और वो तेजी से बाहर आ रहा है। ऊपर से आपने उसमें और एडिशनल हीट एनर्जी ऐड कर दी। हीट एनर्जी क्या है, फ्यूल, फ्यूल हमारा हीट एनर्जी है। आपने एडिशनल हीट एनर्जी ऐड कर दी, अब क्या हो जाएगा, मोर वायलेंट, एक्स्ट्रा वायलेंट हो जाएगा एयर, वो और भी ज्यादा आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वायलेंट हो गया एयर, और ज्यादा डबल वेलोसिटी बन जाती है, जैसे ही आप फ्यूल यूज करते हो डबल वेलोसिटी बन जाती है। इसलिए आपको जो अल्फा थ्रस्ट मिल रहा था वो आपका डायरेक्टली टू अल्फा हो जाता है। और कितने मिनट के लिए यूज करते हैं, अप्रॉक्स 1 to 2 मिनट के लिए हम यूज करते हैं, और डायरेक्टली डबल थ्रस्ट मिलता है। फ्यूल कंजप्शन बढ़ गया इस इंजन का, प्रॉब्लम हुई। बट इस इंजन में क्या प्रॉब्लम हुई विद रिस्पेक्ट, इस जो हमने सिस्टम लगाया वाटर इंजेक्शन आफ्टर आफ्टर बर्नर, जो हमने सिस्टम लगाया, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ एग्जॉस्ट हमारा, इंस्पेक्शन एरिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, और हमने फ्यूल थोड़ा एक्स्ट्रा यूज किया। बट इसके अलावा कोई डिसएडवांटेज है क्या, वेट बढ़ाया, ठीक है, फ्यूल थोड़ा एक्स्ट्रा हमने बर्न कर लिया, जितना बर्न हो रहा था वैसे ही फ्यूल इतना खाता था, हमने और फ्यूल खा दिया, इसके यूज कर लिया, है ना, कंजप्शन और हमने बढ़ा दिया। बस यही तो प्रॉब्लम हुई, वेट बढ़ाया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा लिया, कंजप्शन बढ़ा लिया। इंजन को निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं दे रहा, इंजन को कोई निगेटिव इम्पैक्ट है इससे, नहीं है, कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है इंजन को। वाटर इंजेक्शन में था, वाटर इंजेक्शन तो डायरेक्ट हमारे कंप्रेसर को ही प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा है, कंप्रेसर को ही डिटोरिएट कर रहा है, स्टिकी हो जा रही है कंप्रेसर। क्योंकि जब एयर मॉलिक्यूल्स, जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें आप वाटर आएगा और मिक्स होकर कंप्रेसर ब्लेड पर लगेगा, तो ये स्टिकी होगा, इस पे चिपक जाएंगे, वो हटेगा नहीं, और जब हटेगा नहीं तो वो डिटोरिएट करेगा इंजन को। बस, तो वाटर इंजेक्शन के रेस्पेक्ट में हमने यूज किया आफ्टर बर्नर मैक्सिमम। तो जितने भी जेट इंजन थे उसमें इन्होंने वाटर इंजेक्शन हटाया, और क्या यूज किया, जब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब ये जब टेक्नोलॉजी जब बनी, तो ये आफ्टर बर्नर इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। अब आप समझ जाओ, ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैंने आपको बोला कि फैन इंजन में, जैसे कि इंडिगो के पास फैन इंजन है, अपने एयर इंडिया के पास फैन इंजन है, अकाशा के पास फैन इंजन है, सबके पास फैन इंजन है, लीप इंजन है, ठीक है। और अगर बोइंग में हम लोग जाए, जैसे कि 350 380 इन सब में जाए तो ट्रेंट है, इंजीनियरिंग है, मतलब जीई है, जनरल इलेक्ट्रिक इंजन है, और आपका रोल्स रॉयस का इंजन है, ठीक है। अगर ये सब इंजन है इनके पास, तो क्या ये फैन इंजन है, और क्या हम फैन इंजन में आफ्टर बर्नर या हम कोई भी थ्रस्ट ऑगमेंटेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फैन इंजन को प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी। देखो हमने ग्राफ में यही समझाया आपको कि फैन इंजन का प्रॉब्लम नहीं हो रहा था ह्यूमिडिटी से। ये हमारा प्रोपेलर इंजन था, ये फैन इंजन था, और ये जेट इंजन था, तो इसको प्रॉब्लम ज्यादा हुई जेट इंजन को, सिंपल है, इसको प्रॉब्लम ज्यादा हुई तो इसको लगाया। अब बता देता हूँ जो आपके यासा में लिखा है कि हम फैन इंजन में भी आफ्टर बर्नर यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको।
तो मैंने आपको बताया कि देयर इज अ टू टाइप ऑफ द फैन इंजन, देयर इज अ टू टाइप ऑफ द फैन इंजन, ठीक है, द लो बाईपास एंड हाई बाईपास। तो देखो लो बाईपास में समझ में आता है कि सर फिर लो बाईपास इंजन आप बना रहे हो तो मैक्सिमम थ्रस्ट फिर एग्जॉस्ट से ही मिल रहा है। अब लो बाईपास में समझ रहे हो ना, कंपेयर टू फैन हाई बाईपास। देखो हाई बाईपास मीन्स हमें मैक्सिमम थ्रस्ट फैन से मिल रहा है, लेकिन जैसे ही बाईपास को कम कर दिया आपने तो अब जितना थ्रस्ट हमें फैन से मिल रहा है अप्रोक्स उतना थ्रस्ट हमें एग्जॉस्ट से भी मिल रहा है। सिंपल हो गया ना। हाई बाईपास लो बाईपास मीन्स क्या समझ में आता है, मैंने रेशियो ही तो समझाया आपको। देखो थोड़ा सा समझना ये है ना, नहीं समझ में आया तो दोबारा कमेंट में डाल देना। जैसे देखो इसका रेशियो क्या था, किसका रेशियो 5:1 था, तो ये हाई बाईपास इंजन था। सिंपल है। अब हमने कहा लो बाईपास मीन्स रेशियो बहुत कम होगा, 2:1 रहेगा। मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि जितना फैन से थ्रस्ट मिल रहा है अप्रोक्स अप्रोक्स उतना ही हमें एग्जॉस्ट से भी थ्रस्ट मिल रहा है। मीन्स लो बाईपास वाला जो इंजन है इस पे ह्यूमिडिटी का इफेक्ट कंपेयर टू हाई बाईपास इंजन से ज्यादा होगा। समझ रहे हो ये बात, क्योंकि इसमें भी थ्रस्ट हमारा जो डिमांड है वो एग्जॉस्ट से ज्यादा अब डिमांड हो रहा है। लो बाईपास है ना, हमने फैन से ज्यादा बाईपास किया ही नहीं, हम थ्रस्ट अब यहाँ पे भी हम किससे मांग रहे हैं, इससे मांग रहे हैं, एग्जॉस्ट से मांग रहे हैं। तो जितना थ्रस्ट हमने फैन से मांगा उतना थ्रस्ट हम एग्जॉस्ट से मांग रहे हैं। मान के चलो 50-50% का थ्रस्ट, तो मान के चलो कि आधा जो 50% का थ्रस्ट है इस पे तो इम्पैक्ट आ रहा है ना ह्यूमिडिटी का। दैट्स व्हाई वी नीड वाटर इंजेक्शन और थ्रस्ट ऑगमेंटेशन सिस्टम इन द लो बाईपास इंजन। इसीलिए ऐसा में लिखा है कि लो बाईपास इंजन में भी हमें थ्रस्ट ऑगमेंटेशन सिस्टम यूज करना है, हाई बाईपास में नहीं यूज करेंगे। इसलिए एयर इंडिया जो भी है, जिनके पास भी अभी प्रेजेंट एयरलाइनर्स जितने भी है उनके पास हाई बाईपास इंजन है, उनमें थ्रस्ट ऑगमेंटेशन सिस्टम यूज ही नहीं करना है, बट लो बाईपास वाले यूज करना है। अब आप पूछोगे सर लो बाईपास इंजन क्या कॉमर्शियल एयरलाइन यूज करती है? नहीं यूज करती है, कोई भी कॉमर्शियल एयरलाइन में लो बाईपास इंजन नहीं होता। कहाँ पे होता है? मिलिट्री में यूज होता है लो बाईपास इंजन। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर लिखा है, मिल जाएगा इधर कहीं, देखो एटमॉस्फेयर, नहीं ये नहीं है, कहाँ चला गया, इधर ही है कहीं लाइन पे, देखो मेरे को ध्यान नहीं है, भूल रहा। और क्लास में अब पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा, इधर मिल नहीं रहा है, किधर, इधर ही कहीं था। यहाँ पे तो मिक्स नोजल का हो गया, नोजल वाला कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा क्या है। जैसे कि अभी हमने फैन इंजन का एक कॉन्सेप्ट था वो बता के मैं फिर ये एंड करूंगा। तो देखो यहाँ पे है, लो bypass turbine fan engine used space engine. These engine are used augmenters mean thrust augmentation after burner to increase the thrust, लिखा है। तो बस लो बाईपास इंजन कितना, सम लो बाईपास इंजन, और केवल मिलिट्री वाले यूज करते हैं एयरक्राफ्ट, कमर्शियल में नहीं यूज करते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे एक ना मिक्स नोजल की बात किया गया, मैं नोजल थोड़ा समझा देता हूँ। अभी थोड़ा मैं यहाँ पे फिगर समझाता हूँ, जैसे एक्चुअल फिगर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद ये क्लास एंड करेंगे, ठीक है। तो फीस वगैरह डिटेल वगैरह मैं बता के क्लास एंड करूंगा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ फैन इंजन का कि नोजल का क्या कॉन्सेप्ट है। देयर इज अ टू नोजल, अभी मैंने स्पूल के बारे में नहीं बताया है, स्पूल भी थोड़ा मैं समझा दूंगा। मैं ये कंपेयर कर देता हूँ, मैं तो बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सीरियसली दिख जाएगा। अरे ये क्या आ रहा है, ये बेसिक वाले फिगर आ रहे हैं, इंडिगो का इंजन मंगाते हैं, देखो इसका आ जाए इंडिगो का इंजन, ठीक है, आ रहा है इमेज में। तो देखो ये वाला इंजन, तो आपको इस इंजन में जब देखने को मिलता है तो आपको समझ में आता है सर ये वाला एरिया बाईपास है, हाई बाईपास है, मतलब यही तो बाईपास है, और ये जो है ये कोर का बाईपास है। सिंपल है। तो आपको देखने को मिलता है कि ये दोनों सेपरेट है, सेपरेट है ना, एक नोजल नहीं है ना। अगर एक नोजल होता तो ऐसे हम बनाते कि दोनों को मिक्स करके निकालो साथ में, ठीक है, बट एक नोजल नहीं है, तो इसको बोलते हैं सेपरेट नोजल। क्या बोलते हैं? सेपरेट नोजल, कि हमने फैन का बाईपास अलग निकाल दिया और कोर का बाईपास सेपरेट है, दोनों ही सेपरेट है। तो हम जो इंजन फैन इंजन यूज कर रहे हैं मॉडर्न टाइम में वो सब सेपरेट नोजल पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है।
ये सेपरेट नोजल है। अब मिक्स नोजल वाला भी दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो ये सेपरेट नोजल है, हमने दोनों नोजल को सेपरेट रखा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं से डिफाइंड होगा कि हमारा थ्रस्ट रिवर्सर किस टाइप का लगेगा, क्योंकि इसका जो थ्रस्ट रिवर्सर ब्लॉक किसको करता है, केवल फैन एयर को ब्लॉक करेगा। जो ब्लॉकर डूर होता है थ्रस्ट रिवर्सर का, जब मैं थ्रस्ट टाइप ऑफ थ्रस्ट रिवर्सर बताऊंगा तो बताऊंगा, इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द नोजल्स। अगर आपको नोजल नहीं पता है तो मुश्किल हो जाएगा। देखो कि मैकेनिकल टाइप थ्रस्ट है कि एरोडायनेमिक टाइप थ्रस्ट रिवर्सर है, और मैकेनिकल टाइप हम कहाँ यूज कर रहे हैं, वो कहाँ पे हो रहा है, किस एरिया को ब्लॉक कर रहा है, फैन वाले को ब्लॉक कर रहा है कि कोर वाले को ब्लॉक कर रहा है, देखना पड़ेगा ना। तो वो सब मैं बताऊंगा, इसलिए नोजल बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे समझ लो, फिर जब हम लोग क्लास में जब ये सब करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यूज होता है, कि फैन वाले में कौन सा थ्रस्ट रिवर्सर यूज होगा, मिक्स नोजल में कौन सा थ्रस्ट रिवर्सर यूज होगा, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट थ्रस्ट रिवर्सर यूज होंगे। आज में बेसिक समझ लो बस। तो यहाँ पे देखा आपने कि सर दोनों ही सेपरेट है, एग्जॉस्ट आपके क्या है, सेपरेट है, ठीक है, मिक्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं सेपरेट नोजल, ठीक है। जब एग्जॉस्ट मिक्स करना पड़ेगा तो आपको समझ में आता है कि सर अगर हम चाहते हैं कि दोनों को एक एयर बना के एग्जॉस्ट करें, वन एयर, तो वन एयर बनाना है तो हमको नोजल बड़ा करना पड़ेगा, तभी ना ये कोर का एयर और ये फैन का एयर दोनों मिक्स हो पाएगा, तो नोजल बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जब आप मिक्स नोजल यूज करोगे तो आपका जो नोजल का जो लेंथ होगा वो इंक्रीज होगा, लॉन्ग नोजल होगा, और जब सेपरेट नोजल होगा तो नोजल रहेगा ही नहीं, छोटा सा है, बड़ा नहीं होगा। तो अब एक एग्जांपल बता देता हूँ, आईआई जो इंडिगो के पास है, इंटरनेशनल एरो इंजन, ये वाला, इसमें फिगर आईआई अगर मैं सर्च करता हूँ, अगर इधर आ गया तो मैं दिखाता हूँ, इंटरनेशनल एरो इंजन। जो इंटरनेशनल एरो इंजन है वो आपका यूज करता है मिक्स नोजल, लिखता हूँ IAE, इंडिगो के पास है, लिख देता हूँ इंटरनेशनल, वैसे नहीं आएगा नहीं तो, इंटरनेशनल एरो इंजन। इंडिगो के सीओ वाले एयरक्राफ्ट में ये देखने को मिलता है, V2500 इसको बोलते हैं, जो अभी मैं लिख रहा था तो आ रहा था ना V2500, इसको बोलते हैं V2500 इंजन, ठीक है। तो ये जो इंजन है ये मिक्स नोजल यूज करता है सीओ वाला। इसमें देखो ये आ गया, देख रहे हो यहाँ पे। तो आपने देखा कि सर अगर यही हमारा फैन इंजन होता तो उसका नोजल यहीं पे खत्म हो गया था फैन का, बट देखो ये एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि कोर और प्लस फैन का जो हमने एग्जॉस्ट किया है उसको मिक्स किया, तो इसको बोलते हैं मिक्स नोजल या लॉन्ग नोजल, ठीक है। ये IAE इंजन है, इसको V2500 बोलते हैं, इंडिगो के पास यही है। तो अभी जितने इंडिगो इंडिगो अब जिनको भी सर्टिफाइंग स्टाफ बना रहा है वो उनका ऑथराइजेशन इन पे नहीं दे रहा है, सबको लीग पे ही ऑथराइजेशन दे रहा है, 1 अल्फा 26 पे। तो सिंपल हो गया, नोजल आप समझ गए। तो नोजल के बेसिस पे अब देखो यहाँ पे जो थ्रस्ट रिवर्सर बनाओगे तो ब्लॉक थ्रस्ट रिवर्सर में हम क्या करते हैं, जो एयर एग्जॉस्ट हो रहा है उसको ही तो ब्लॉक कर रहे हैं ना, ब्लॉक करके इधर से हम निकाल देंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज देते हैं, साइड बाय साइड निकालेंगे। तो अब यहाँ पे जो ब्लॉकर डोर लगाओगे वो दोनों एयर को ब्लॉक करेगा ना, कोर को भी ब्लॉक कर रहा है और प्लस फैन वाले एयर को भी ब्लॉक कर रहा है। इजी टू अंडरस्टैंड। ब्लॉक करोगे एयर को, एग्जॉस्ट पे ही तो हम ब्लॉक करते हैं थ्रस्ट रिवर्सर में, तो जैसे ही ब्लॉकर डोर ब्लॉक करेगा एयर को तो फैन प्लस कोर दोनों को ब्लॉक करेगा। तो इसका ये जो थ्रस्ट रिवर्सर है वो डिफरेंट है, और फैन जो हमने इंजन यूज किया अभी, इससे पहले जो इंजन यूज किया जहां पर सेपरेट नोजल था वहां पे तो कोर अलग है ना, तो कोर एयर को क्या आप ब्लॉक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। मीन्स जो हमारे पास इंडिगो या एयर इंडिया, आकाशा, जिनके पास भी इंजन्स हैं उनके पास जो थ्रस्ट रिवर्सर कनेक्टेड है, लगा हुआ है, वो सारे थ्रस्ट रिवर्सर के ब्लॉकर डोर ट्रांसलेटिंग कॉल्स वाले हैं, ट्रांसलेटिंग स्लीव, ट्रांसलेटिंग कॉल वाले ब्लॉकर डोर्स हैं, वो ब्लॉकर डोर केवल फैन एयर को ब्लॉक करते हैं, ना कि कोर को। कोर पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं चल रहा। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि सर देयर इज अ टू टाइप ऑफ थ्रस्ट रिवर्सर, बस इसीलिए दो तरह के थ्रस्ट रिवर्सर बनाए गए हैं, समझे बात। अगर ये नहीं होता तो नहीं होता दो टाइप के थ्रस्ट रिवर्सर, बस ये नोजल की वजह से ये दो टाइप के बना दिया, इसलिए मुझे ये आपको समझाना था, ठीक है भाई। मैं थक गया आज। तो मैं डिटेल्स बता देता हूँ, ठीक है, फीस की और क्लासेस की डिटेल बता देता हूँ, ठीक है, कि हम लोग कंटिन्यू कब करेंगे। तो हम जैसे ना 2 दिन की वैलिडिटी रखेंगे डिस्काउंट की 25 तक, ताकि जब आप लोग जब तक एलिजिबल हो गए आप लोग इनरोल कर लोगे, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है।
और मैं बाकी डिटेल आपको बताता हूँ। तो क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो जब तक हम डिस्काउंट रखेंगे तब तक क्लास नहीं रहेगा कंटिन्यू, 25 तक क्लास नहीं होगा, उसके बाद हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो शेड्यूल उसके बाद ही दूंगा, मैं 26 को शेड्यूल दे दूंगा, 25 को इवनिंग तक शेड्यूल आपको क्लास का दे दूंगा। तो वीकली 3 डेज का एक क्लास रहेगा, ठीक है। और इवनिंग में ही हम रखते हैं क्लासेस, सारे क्लासेस इवनिंग में, क्योंकि मैं रोटेशन में हूँ तो इवनिंग में ही सारे क्लासेस रहते हैं। तो हमें वीकली 3 डेज मेंटेन करना होता है, तो वीकली 3 डेज का क्लासेस होगा, ठीक है। और मैं वो ग्रुप में बताता रहता हूँ कि आज क्लासेस होगा या नहीं होगा। तो वीकली बस 3 डेज का क्लासेस रहेगा, ठीक है। तो फीस मैं बता देता हूँ, और एनरोलमेंट बाकी डिटेल में भेज दूंगा एंड आपके ग्रुप में, क्लास वाले ग्रुप में। तो फीस है ना, जो एम्प्लॉयड है उनके लिए अलग है, और जो स्टूडेंट है अभी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए अलग है, ठीक है। तो एम्प्लॉयड के लिए मतलब मैं फ़ीस कम कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी जो सेशन में लिया था उससे कम करूँगा। तो अभी मतलब एम्प्लॉयड के लिए इतना था, मतलब मैंने इतना पिछले सेशन में मांगे था, बट डिस्काउंट पे मैंने इतना दिया हुआ था। बट मैं बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि फिर उसको ज़्यादा में दिया उसका कम में दिया, इसलिए तो मैं फ़ीस कम कर रहा हूँ। तो मैं 2K कर रहा हूँ फ़ीस। तो 2K पे डिस्काउंट करके ये 1700 कर रहा हूँ, ठीक है। 1700 एम्प्लॉयड के लिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं डिस्काउंट करके कर रहा हूँ 1600, और 15 करता हूँ। 1600 प्रीवियस सेशन में था, तो मैं कम कर रहा हूँ इस बार फीस, बता देता हूँ। उसमें मेरे को कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है, आप फीस डिटेल भी देख सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, ठीक। तो ये डिस्काउंट हम रखेंगे, कब तक रखेंगे, तो एक्चुअल डिस्काउंट हम लोग रखेंगे, वैसे 1900 स्टूडेंट्स का था, तो इस पर डिस्काउंट करके मैं आपको 1510 कर रहा हूँ। और इसका 2K मैं बता रहा हूँ जो कि रिड्यूस किया हूँ। तो 2K है तो मैं डिस्काउंट करके 1710 कर रहा हूँ। तो ये 25 जून तक डिस्काउंट रखेंगे। उसके बाद क्लास जैसे आप इनरोल कर लोगे तो हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो 26 से हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे बस। बाकी कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ लो कुछ। अब आपका हम रेगुलर सेशन के लिए करा रहे हैं, तो इसलिए हम वीकली 3 डेज का क्लास करते हैं। तो आपका रेगुलर सेशन आने से पहले हम लोग सारा कवर कर देते हैं, एक भी चैप्टर नहीं बचेगा। चैप्टर क्या, चैप्टर तो बहुत छोटी चीज़ है। 11-13 मैंने 3 दिन में पढ़ा के खत्म कर दिया, 3-3 दिन में। और वो भी वीकली बहुत बार नहीं हो पाता था क्योंकि घर में बहुत इशू हो गया था, मैं कई बार लीव भी लिया, एग्ज़ाम भी थे मेरे, फिर भी मैंने 11 और 13 कवर कर दिया। 3 डेज ही केवल क्लास ले रहा था, तो वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम रेगुलर सेशन के लिए वैसे कर रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम से पहले हम लोग मतलब 15 डेज़ का टारगेट रहता है कि 15 डेज़ पहले एग्ज़ाम से सब कुछ खत्म करेंगे। लेक्चर मैं आपका बहुत आपके 45 रहेगा। जैसे प्रीवियस सेशन में मैंने जो लेक्चर कवर किया है उसमें आई थिंक 45 लेक्चर्स हैं, है ना। तो 45 मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत स्लो स्लो लिया है लेक्चर्स, बट मैं फास्ट करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने 11-13 किया, तो 3 डेज में पढ़ा के आप कवर नहीं कर सकते। तो मैंने क्लासेस कैसे कर रहा था, टू 2 आवर एंड 2.5 आवर की क्लासेस डेली था। और लास्ट में जो 15 दिन का डेज था एग्ज़ाम से पहले, उसमें मैंने 2.5-2.5 घंटे के लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। तो अप्रॉक्स 2 आवर का लेक्चर रहेगा, क्योंकि दिन में केवल एक ही क्लास रखता हूँ इवनिंग में। तो अप्रॉक्स 2 आवर का लेक्चर रहेगा, ताकि हम लोग टाइम से कवर कर देंगे, ठीक है। तो अगर 2 आवर्स का लेक्चर कर रहा हूँ, जैसे 1 आवर का लेक्चर्स किया था तो 40-42 के अप्रॉक्स लेक्चर आए थे, कम है, या 40 का अप्रॉक्स मान सकते हो है। और 2 आवर्स का लेक्चर अगर हम कर रहे हैं तो हमारा बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो मान के चलो अप्रॉक्स 30 से भी कम, 26-27 लेक्चर्स में हम लोग कवर कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी कोई डाउट हो, अगर कुछ जानना हो तो गैस टरबाइन का पूछ सकते हो अभी। हाँ, 11 का क्लास का भी डेमो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जैसे कि मेरा ना कल परसों मेरा आफ्टरनून है, तो नाइट शिफ्ट के बाद स्टार्ट करूँगा, थोड़ा रिलैक्स होकर सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का। तो 4 दिन बाद हमारा 11 और 13 का डेमो रहेगा। फीस उसका देखो, ऐसे बताऊँगा तो फिर नहीं हो पाता है ना। डेमो में समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं फीस बता दिया फिर लोग कहते हैं कि सर आपने उनसे इतना मांगा, फिर आप डेम क्लास में तो इतना मांग रहे हो, ठीक है। तो वो तो मेरे को देखना पड़ेगा, तो क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फीस बताऊंगा। क्योंकि अगर ना, मैंने कई लोगों के साथ ऐसा हुआ था मेरे साथ,
कि कुछ बच्चे लगते हैं कहने कि सर आपने उनसे 1600 मांगा, मेरे से 1700 मांगा, तो अब उनको कैसे समझाऊं कि उनके लिए डिस्काउंट था, आप नहीं थे तो आपके लिए डिस्काउंट नहीं था। तो सबके लिए फिर इशू हो जाता है, इसलिए फीस मैं डेमो में ही जनरली शेयर करता हूँ, और वैसे शेयर करूँगा तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग लेक्चर में भेज दूंगा, आप देख सकते हो।